हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपसे कुछ शेयर करना था। Today, till 11 a.m. in the morning, I was all over the place. Like, I was filled with anxiety. And you know what? I remember one of my mentor, Mel Robbins, she shared something that is 5-second rule. And I remember that and the magic happened. So I want to share that rule with you guys. And believe me, there are more than a million people have approved this rule works magical. So the magic is, what you have to say is, like, for example, if you're going for a job interview and you are very nervous, you are having so much of self doubt, and you are just you're just not feeling that great enough, tell yourself 5, 4, 3, 2, 1, and there you will go, and you will really have a shift in you, and you will get the magic, and you will see the magic happening. So try this. This really works, and it works like a wonder. And you can try anywhere. If you are not in a good health and you want to push yourself for the workout, you can try this for you. You can say yourself 5, 4, 3, 2, 1, and you will hit the gym. So this is the way you can really shift yourself, and it works magical. So let's see, try this, and हमें भी बताएं कि whether it worked for you or not. So today our live is really amazing. Today our guest, she is really amazing, and आज के जो हमारी guest है उनकी जर्नी हमें जानने मिलेगी, and that is nothing like it. Let's see what she has in her journey and how it gets. हम यहाँ से आज क्या लेके जाने वाले हैं. So let's start our live and let's connect with our guest first. So let me connect with her. She's not yet in the list. We'll wait for her. And one second, I guess she came. Okay, still not came. So दोस्तों, कहीं भी लाइफ में, wherever you feel you are stuck on something, you can try it. Okay, let me connect with her. Okay, I'm adding. Let's this is our Women's Month, and let's celebrate our heroes. And today our heroes is Neha Pradeep Jetwani, and today she is going to share her journey, and let's see what she has to share with us, and let's deep dive in. हेलो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल, थैंक यू. कैसी हो? हाँ, मैं एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? बढ़िया, मजा आ रहा देख के. मजा आ रहा है ना? चलिए चलिए, वेरी गुड. तो हम सेशन शुरू करते हैं. नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, सबसे पहले योर इंट्रो, वो जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ. ओके, आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज नेहा प्रदीप जेठवानी. शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज अ काउंसलर, शी इज डूइंग meditation. She is taking meditation since 20 years, and she is a yoga therapist. She takes a lot of workshops. She is doing so much, and she's also been awarded as a Nari Shakti Award, and she is an incredible human being, and she is really amazing, really amazing. I know her, and she is a really gem of a person. So let's get to know more about her, और उनकी जो जर्नी है वो जानने में हम सबको सच में बहुत मजा आने वाला है. तो जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि what she had and how she was in her childhood, और क्या क्या हुआ. Let's see, let's find out. तो नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल. वेलकम वेलकम. तो आप कंफर्टेबल है तो स्टार्ट करें? हाँ, बिल्कुल शीतल. ओके ओके. तो नेहा जी, जैसे
कि मैं आपको जानती हूँ बचपन से, बचपन में आप कैसे थे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको अभी जानती हूँ, आप बहुत ही शांत हो। आप बहुत ही शांत हो, एकदम शांत स्वभाव के। और तो बचपन में भी क्या वैसे ही थे कि आप बहुत चुलबुले थे? कैसे थे आप बचपन में? बचपन से ही मैं बहुत शांत थी। और जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी ने बताया कि बहुत बार ऐसा लगता था कि जब तुम सो रही होती थी तो बिल्कुल भी हलचल नहीं होती थी, या कहीं बैठी हो तो इतनी शांति से बैठी होती थी कि पता ही नहीं चलता कि तुम जिंदा हो कि मर गई। बहुत बार तो तुम्हें चेक करने के लिए आना पड़ता था कि ओके सांसें बराबर चल रही है। तो अरे शुरू बाप! से ही शुरू से ही ऐसे ही मैंने सुना है कि मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी बहुत ही शांत थी। और शांत स्वभाव तो ये अभी तक रहा है, लेकिन एक समय के साथ साथ कुछ कुछ चीजें बदलती गई, थोड़ी थोड़ी बहुत चुलबुलाहट बदलती गई, लेकिन ज्यादातर जो है वो अगर आप बोलोगे तो बचपन से ही बहुत ही शांत थी मैं। बहुत शांत, ओके। तो आप अभी भी शांत हो, बहुत ही ज्यादा शांत हो। आप दूसरों को भी शांत कर देते हो एकदम। होती ओके। है। हाँ, आपको देख के ही शांत हो जाते हैं ना, ऐसे। तो नेहा जी, आप कुछ बचपन का कोई एक्सपीरियंस, एक अच्छा और एक बुरा, कोई आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हम्म। जैसे एक बचपन की जो सबसे अच्छी बात कि हम चार भाई बहन हैं। ओके, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। फर्स्ट मेरी बड़ी सिस्टर है, सेकंड मैं, उसके बाद मेरा भाई, उसके बाद छोटी बहन। तो पहले आप ये समझ सकते हो कि पहले भाई बहन होते तो बड़े ज्यादा होते थे, तो आपस में ही बहुत रौनक हो जाती थी। तो आपस में ही लड़ते भी थे, प्यार भी साथ में ही होता था। तो बचपन से ही जैसा मेरा नेचर था कि मैं बहुत ही शांत होती थी, किसी भी बात को लेकर के कुछ भी कोई बोल के जाए चुप करके सुन लेती थी। तो ऐसे ही दो तीन घटनाएं हैं जो मुझे अच्छी तरह से याद है। एक जब मेरी बहन मेरे को परेशान करती थी। मेरी बड़ी बहन जो है वो थोड़ी चुलबुली नेचर की है। अब तो काफी शांत है, लेकिन बचपन में बहुत ही ज्यादा चुलबुली थी और मैं बिल्कुल शांत थी। तो वो बहुत बार कुछ ना कुछ वो उसकी शरारत चलती रहती थी, वो शरारत करती थी और फिर वो मेरे सामने आती थी और आ अच्छा। करके फिर वो मेरे को बोलती थी कि इसमें तुम भी भाग लो और मिल के ऐसा करेंगे, कुछ भी ऐसा रहा तो मैं बहुत चुप रहती थी। मैं बोलती थी नहीं, मैं तो नहीं करूंगी ऐसा, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे मेरे पापा और मेरी मम्मी को कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी। क्योंकि बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा, पता नहीं कहाँ से ये समझ थी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे पापा को या मेरी मम्मी को तकलीफ हो जाए या मेरी फैमिली को तकलीफ हो जाए। तो मैं उसका साथ नहीं देती थी। तो वो बहुत बार चिढ़ती थी और उसको गुस्सा बहुत आ जाता था, तो आ करके वो मेरा गला तो नहीं दबा सकती थी, लेकिन वो आके दोनों हाथ मेरे गले के पास रखती थी और कहती थी कि अगर तुम साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। तो ऐसा नहीं था कि मुझे गुस्सा नहीं था, गुस्सा मुझे आता था, लेकिन ना मुझे बोलना नहीं आता था। तो मैं अपने गुस्से को शांत होके व्यक्त करती थी कि मैं चुप हो जाती थी। मैं सिर्फ उसको देखती रहती थी कि वो क्या कर रही है, वो कैसे कैसे मुंह बना रही है, कैसे अपने दांतों को दबाती थी ऐसे, और मैं शांत हो जाती थी और मैं उससे बात नहीं करती थी, चुप हो जाती थी। मेरा चुप होना उसको इतना परेशान करता था। वो एक दिन वॉच करती थी कि मैं चुप हूँ, उससे बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे दिन उसको फिर और गुस्सा आता था, वो फिर आके गला दबा के तुम बात करोगी कि नहीं, भी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। तो मैं चुप रहती थी, तो तीसरे दिन फिर उसको लगता था ये ऐसे नहीं मानेगी, तो फिर वो मुझे बोलती थी कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ना कुछ बना के खिलाती हूँ। क्योंकि मैं बचपन में तो मोटी थी और खाने की थोड़ी शौकीन थी, तो वो बोलती थी मैं तुम्हारे लिए ये बना देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कुछ ना कुछ बना के मेरे आगे रखती थी कि ये खा के खुश हो जाएगी। तो ये चीजें अभी भी मुझे याद आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बचपन की ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी जो मुझे हमेशा आज भी बहुत खलती है, और वो खलता है कि जब हम लोग छोटे थे तो पापा हमारे साथ, मतलब पापा, हमारा बिजनेस था, तो पापा दिन के टाइम पे आते थे और आकर के फिर साथ में पापा सैलेड काटते थे। मम्मी रोटी बनाती थी और पापा सैलेड काटते थे, और हम चारों भाई बहन जो है जमीन पे बैठ के मम्मी पापा के साथ खाते थे। मम्मी रोटी बना के रख देती थी कि साथ में खाना है। तो ये जो वो पल था कि साथ में बैठ के खाना,
इतना अच्छा लगता था कि मैं आज भी वो चीज मिस करती हूँ। बहुत बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं या हम हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे, हम ऐसे ही, मैं वैसे ही देखना चाहती हूँ हाँ, कि साथ साथ में बैठ के खाएं। लेकिन वो चीज ऐसे हो नहीं पाती है कि मैंने बच्चों को सर्व कर दिया, पहले हस्बैंड को सर्व कर दिया या घर वालों को सर्व। तो वो चीज मैं बहुत मिस करती हूँ कि लगता है कि सब साथ में बैठ के खाना चाहिए, गरम रोटी ही क्या, ठंडी रोटी ही क्या, बोलते हैं ना, मिलके तुम जो खाओ, सूखा खाना वो भी अच्छा लगता है। तो वो चीज मैं मिस करती हूँ, और वो सबसे प्यारी मेमोरी है मम्मी पापा और हम चार भाई बहनों की साथ में मिलकर के खाने की। नाइस और दैट। जैसा कि ये अच्छी मेमोरी आप बोलो तो ये साथ में हो जाती है, वैसे ही कुछ ऐसी यादें हैं जो दिमाग में अभी तक बैठ गई हैं। और उनमें से एक दो बातें हैं जो पहले मैं अपने थोड़े स्वभाव के बारे में बताऊंगी तो ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि मेरा नेचर शुरू से बहुत शांत था, मैं बिल्कुल शांत रहती थी, और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, मतलब बोलती नहीं थी लेकिन सबके चेहरे देख के समझ जाती थी। जैसे पापा का चेहरा देख के समझ जाऊंगी, मम्मी का, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी तो चाचा चाची हुए, सब साथ में ही हम रहते थे, तो मैं सबकी शक्ल देख के समझ जाती थी कि किसके अंदर क्या चल रहा। बहुत छोटी थी तो समझ जाती थी। तो समझने की वजह से मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी। जैसे होता है ना कि जब तुम चीजें समझ जाते हो तो तुम कुछ नहीं बोलते हो, चुप हो जाते हो। तो ऐसा ही था, सबको समझती थी, बहन को समझती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, पापा की परेशानी को समझती थी। मतलब एज नहीं थी, आप ये समझ लो ना कि एज से पहले मैच्योर हो जाना। मतलब राइट। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी थी तो मैं बहुत ज्यादा ही मैच्योर हो गई थी, अपनी एज से बहुत ज्यादा ही मैच्योर हो गई थी, बचपन को एंजॉय नहीं कर पाई। राइट। एक बच्चन कैसे चुलबुलापन होता है कि तुम एंजॉय करते हो, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी होती दुनिया की, राइट। तुम्हें जो करना है कर दो, वो नहीं कर पाई मैं। इतनी ज्यादा समझ बढ़ गई थी कि मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ भी किया तो कोई भी, मेरी कोई भी हरकतें किसी को परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए मैंने वो बचपना बचपन में ही छोड़ दिया था, सिर्फ एक मैच्योर बन के रह गई थी। ये राइट। समझ कहाँ से थी, क्यों थी, जबकि वही सारा बचपना मैं अपनी बड़ी बहन में देखती थी, उनको मस्ती करते हुए, शरारत करते हुए देखती थी, भाई को भी शरारत करते हुए देखती थी। और एक अपने ही भाई बहन की एक ममा बन गई थी, समझो कि बीच में थी लेकिन दोनों की ममा हो गई थी मैं। ओके। इस प्रकार का नेचर था। तो जैसे जैसे मेरी, मतलब मेरी समझदारी की वजह से जब मैं छोटी भी थी तो भी मैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को, मतलब मैं समझती थी कि वो ये क्या चाहते हैं, कि ये एक जिम्मेदार है और इससे कोई गलती नहीं होगी, ये उनके दिमाग में सेट था। ये मैंने राइट। सेट नहीं किया था, ये मुझे देख करके उनके दिमाग के अंदर बैठ गया था कि ये गलती नहीं कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि अभी भी मैं बोल रही हूँ तो शायद मेरी समझ वहां तक नहीं हो कि वो क्या सोचते थे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता था कि नहीं, ये बहुत मैच्योर है, इससे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बचपना तो अंदर होता ही है, और हम सबके अंदर भी वो बचपना, हम कितने भी बड़े हो जाए ना, एक बचपना तो हमारे अंदर रहता ही है। टीनेजर और हमारे अंदर हमेशा छुपा होता है ना। बस एक मौका चाहिए आपको। बस तो बस वो बस। बचपना अंदर, अंदर से वो बचपना था ही। तो ज्वाइंट फैमिली थी तो एक, और पापा को तीन बेटियां, और जो वो टाइम था, मतलब आज समझ लो कि आज मैं 45 की हो चुकी हूँ, और आज से आप इतने साल पहले की बात करते हो, तो एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होना और इतने घर में एक माँ बाप की तीन बेटियां होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो पापा, ऐसा कभी शो तो नहीं किया मम्मी पापा ने, लेकिन उनके मन में भी था कि भाई तीन बेटियां, लेकिन उन्होंने बेटे की तरह ही हमें पाला आज तक। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी हमारे, जो भी हमें संभालने में, हमें हमें कोई कभी कुछ भी कमी नहीं रखी। लेकिन हमारी केयर। ज्वाइंट फैमिली थी, हाँ। तो ज्वाइंट फैमिली थी, तो ज्वाइंट फैमिली में जैसे पापा के भाई, जो पापा के बीच वाले भाई यानी कि जो मेरे चाचा हुए, उनके मन में ये होता था कि भैया के ऊपर तीन तीन बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब तीन बेटियां हैं उनको, तो क्यों नहीं भैया जल्दी अपनी जवाबदारी, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे जल्दी फ्री हो जाएं। तो वो हमेशा उनके दिमाग में होता था कि जैसे लड़की, अब लड़की बड़ी होगी ना उसकी शादी कर देंगे, मतलब 18 ईयर्स की हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे, ये उनके दिमाग में सेट था। तो वो शुरू से ही उनकी बातें मैं ऐसे सुनती रहती थी बचपन से ही कि हाँ, जल्दी शादी कर देनी है, जल्दी शादी कर देनी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं,
तुम ना बिल्कुल, तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हें बहुत जल्दी मौका मिल जाए कि जल्दी शादी कराने का। तो मैं छोटे से ये सुनती थी कि जल्दी शादी करा देनी चाहिए, राइट। लड़कियों की जल्दी फ्री कर देना चाहिए। तो एक बार मतलब छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, सिक्स में थी या शायद सेवेंथ में थी मैं सेवेंथ में थी और मेरी बड़ी बहन जो है वो नाइन्थ में। और जहां से मैं हूँ वो बहुत छोटा सा गांव है, मतलब मैं छोटी जगह से हूँ, छोटे से गांव से हूँ। तो गांव में तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है गांव में कि आप छोटी सी जगह पे हो और लड़कियां बाहर निकल रही हैं, जा रही हैं, तो एक बहुत बड़ी बदनामी जैसी बात हो जाती थी। तो वो प्रेशर पापा के ऊपर था शुरू से ही कि बाप रे मेरी बेटियां हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मेरी बेटी के लिए कुछ भी गलत बोले, क्योंकि राइट। बेटियां हैं, छोटी सी जगह पे हैं हम, मॉडर्न नहीं ये सब चीजें। अंदर से हम मॉडर्न थे, फैमिली हमारी मॉडर्न थी, लेकिन हमें समाज के अनुसार चलना पड़ता है। तो वो उनके राइट। दिमाग के अंदर था। तो छोटी सी जगह पे थी और छोटी सी जगह पे एक बड़ा सा होटल खुला। ओके, रेस्टोरेंट नहीं बोलूंगी मैं, होटल बोलूंगी, मतलब उसमें खाना पीना रहना सब कुछ था। तो जैसे मेरी बहन और मैंने सुना कि एक अच्छा सा यहाँ पे एक होटल खुला है, वहां खाने पीने की भी जगह बहुत अच्छी है, तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि चलो, वो उसको बहुत शौक होता था हर चीज का। तो उसने मुझे बोला कि चलो हम चलेंगे, और पैसे तो हमारे पास जमा हैं, क्योंकि पहले इतने पैसे तो मिलते नहीं थे, थोड़े से ही पैसे मिलते थे, तो वो पैसे को थोड़ा जमा करके ही रखा था कि हम दोनों अपने ही पैसे से चल के और जाके कोल्ड ड्रिंक्स पी के आएंगे। ओके, तो वो पैंट। फैंटा होता था और ये सब चीजें। हाँ, तो वो दिमाग में था, तो मुझे था कि हाँ अरे वाह चलो हम चल के पी के आएंगे। बाकी कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम दोनों ने क्या किया कि मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ नहीं थी कि इस चीज के लिए मम्मी पापा की परमिशन लूं। और हम राइट। दोनों बहनें जो हैं वो चल दिए, वहां पे चल करके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवा करके पी के बड़े मजे से घर आए। जब तक हम घर पहुंचते उसके पहले तो मेरे पापा को, क्योंकि जगह छोटी थी, आप कुछ भी करते थे ना तो वो बात चारों तरफ फैल जाती थी और पता चल जाता था। ऐसा तो ये भी पता चल गया कि उनको आके किसी ने बोल दिया कि आपकी जो बेटियां हैं वो बैठ करके कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हैं, और ऐसे करके उनको कुछ बोला उन्होंने। वो घर बहुत गुस्से में आए। जैसे मैंने सुना कि वो आ रहे, उनकी आवाज आई, तो मुझे लग गया कि कुछ तो गलती हुई है। जैसे मैंने उनकी आवाज सुनी आने की, मैं बाथरूम चली गई, क्योंकि मैं डरती बहुत थी। पापा बहुत गुस्से वाले थे, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा था। अब बहुत काम है, लेकिन एक टाइम पे इतना गुस्सा होता था उनका कि बहुत बार तो उनको देख के उल्टी किताब भी खुल जाती थी। और मम्मी को जो भी काम कराना होता था ना, मम्मी बहुत बार झूठ बोलती थी सब पापा का नाम लेकर के। पापा ने ये बोला तो हम लोग डर से ही काम कर देते थे, जबकि वो पापा ने बोला भी नहीं होता था। वो बाद में धीरे धीरे समझ आने लग गया। तो पापा के नाम पे शुरू से ही हमें बहुत अच्छी तरह से कि पापा बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले, तो एक इम्प्रेशन भी वही बनी, और थे भी गुस्से वाले बहुत वो। अभी काफी काम है, शायद देख भी रहे होंगे। तो वो जो है ना, वो घर आया और मैं बाथरूम में ही छुपी रही। पापा आए और आकर के मेरी बड़ी बहन पकड़ी गई। उसे, उनको जितना डांटना था, जो सुनाना था सुना लिया। और मैं बाथरूम में ये बंद करके आवाज सुन रही थी। मैं तब तक बाथरूम में बैठी रही जब तक पापा वापस गुस्सा करके शॉप पे चले नहीं गए। मैं अंदर, उसके बाद मैं निकली वहां से। और निकली तो इतना डरी हुई थी कि मुझे लगा कि आज तो खैर नहीं है, रात में भी तो क्लास तो लगनी ही है। तो मैं उस डर से पापा के सामने ही नहीं आई। मतलब पापा अगर आकर के हॉल में बैठते थे तो मैं रूम में होती थी, पापा रूम में रहे तो हॉल में। ऐसा मैंने 10 दिन हो गए थे और मैंने अपने पापा से बात नहीं की थी, क्योंकि मैं पापा को अरे। फेस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि पापा बोल रहे थे तुम्हें मालूम है क्या, वो मुझे नहीं बोल रहे थे, बड़ी बहन को बोल रहे थे कि तुम लोग जो गए थे वो जो होटल था वो अच्छा होटल नहीं था, वहां पे सही काम नहीं होता, तुम लोग चले गए। कुछ कुछ तो मैंने सुन लिया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं वहां चली गई। तो उसकी गिल्ट मेरे अंदर इतनी थी कि मेरी इंप्रेशन ऐसी है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकती और मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं अपने मम्मी डैडी को कैसे फेस करूंगी। मम्मी को तो फेस कर लूं, लेकिन पापा मेरे लिए शुरू से बहुत ही आइडियल रहे। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि मुझे तो पापा जैसा ही हस्बैंड चाहिए, क्योंकि मेरे पापा देखने में हीरो, तो मेरा हस्बैंड हीरो लगना चाहिए। मतलब सब कुछ पापा जैसा, पापा बहुत मेहनती तो मुझे वैसा ही चाहिए।
जैसे पापा वैसा ही मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, और शायद हर एक लड़की वैसा ही सोचती है कि उसके पापा जैसा ही उसका पार्टनर होना चाहिए, मे बी ये चीजें होती हैं। तो मेरे अंदर इतना वो बैठ गया था कि मैंने 9-10 दिन तक मैं पापा के सामने ही नहीं आई, शायद पापा को ये याद भी नहीं होगा ये सारी बातें, लेकिन उसका असर मेरे दिमाग में इतना था, इतना गहरा था कि 10 रात तक मैं ढंग से सो भी नहीं पाई थी। मैं तब ओह। तक नहीं सो पाई जब तक मैंने पापा को फेस नहीं किया। 9-10 दिन की बात थी कि मेरे पापा को दिल्ली जाना था किसी काम से, सामान लेने या कुछ करने। तब वो मेरे सामने आए और आकर के मेरे सर पे हाथ रखा कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपने आप को संभाला। और जो मैं फूट फूट के रोई, मतलब उनको गले लगाया और फूट फूट के मैं रोने लगी। तो पापा ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। पापा ने बोला ओके ओके। तो मैं ना, जैसे कोई मेरे से गलती होती थी, कैसे बच्चे जिद्दी होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं गलती नहीं हुई है, मैं तुरंत रियलाइज कर लेती थी और तुरंत मैं बोलती थी कि सॉरी अब से नहीं होगी। मतलब ये मेरा एक रूल था कि मेरे से अगर कोई गलती हो गई जो मुझे पता नहीं है, मुझे बोल देना है कि अब से मैं कोशिश करूंगी ऐसा नहीं करूं। ये बचपन से ही यही चला आ रहा था। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो बहुत दर्द वाली है कि कभी भी मैं सोचती हूँ तो कितने हम इनोसेंट थे कि हमें कुछ पता नहीं था कि ये हमसे गलती हो रही है। और पापा का सर पे हाथ रखना और मेरा पिघल के फूट फूट के रोना, क्योंकि 10 दिन मैंने जो पेशेंस रखा था और जो उनसे दूरी रखी थी, वो दूरी खत्म करना बहुत ही मतलब ये बहुत ही टचिंग है, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाली चीज बोलो कि मुझे याद है कि वो अपने पापा को फेस करना और फिर एक बिल्कुल एक गंगा नदी की तरह बह जाना रो करके कि मुझे माफ कर दो भाई कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो वो मुझे याद है। और एक और एक और है। रूपा जी लिख रही है, पुरानी बातें याद आ गई, आपकी वही हाँ बहन है ना? राइट। बिल्कुल। तो वैसे ही एक बार मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब ये तो मैं थोड़ी बड़ी की बात बता रही हूँ, शायद मैं उस समय फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगी, मैं तब की बात बता रही हूँ, जो बहुत ही पेनफुल और जिससे बड़े होकर के मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा नेचर क्या था जो पहले से चला आ रहा है। मेरी बुआ जो है उसने मुझे पहले चवन्नी होती थी, मतलब 4 आने 8 आने ऐसे करके होता था। तो पहले जिस समय जब मैं छोटी थी उस समय एक चाय 4 आने की मिलती थी। ओके। तो मैं घर में दूध फट गया था। जैसे पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे कैसे अभी आप जब जो आपको दूध का पैकेट मिल जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको दूध लेने के लिए या तो सुबह को आपको जाना पड़ेगा या दूध वाला आपके घर पे आएगा या शाम में दूध वाला ऐसा आएगा। तो घर में दूध फट गया था और चाय पीनी थी। तो मेरी बुआ ने मुझे 1 रुपी दिया और बोला 4 चाय लेकर के आओ। ओके। और स्टील का ग्लास दिया। तो बहुत ही मतलब ओबीडियंट होती है ना, बहुत ओबीडियंट थी मैं कि जो बोले यस कर दो कर दो कर दो ऐसा। तो वो जब मुझे चाय के लिए उसने पैसे दिए, मैं चाय लेने के लिए गई, और चाय स्टील में अगर आप चाय डालते हो ना तो चाय बहुत देर तक गर्म रहती है और स्टील बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो मुझे उतनी समझ नहीं थी, छोटी थी। जब उसने 4 ग्लास चाय देकर दिया भर के, तो वो 4 ग्लास में ही, मतलब 4 छोटे छोटे ग्लास होते हैं, उसने एक ग्लास दिया था मेरी बुआ ने स्टील का। उसमें इसने चारों कप जो चारों छोटे छोटे ग्लास डाल दिए, उससे वो एक पूरा ग्लास स्टील का भर गया। इतना भर गया और इतना गर्म था कि मैंने उसको हाथ से पहले ऐसे उठाया लेकर के आने के लिए। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा हाथ जल रहा है। लेकिन मैं इतनी ओबीडियंट थी कि मुझे लगा कि चाय गिर जाएगी, चाय गिर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। फिर बुआ के सामने मैं क्या बोलूंगी, बुआ ने मुझे संभाल के चाय लाने को बोला है तो मैं कैसे गलती करूंगी। तो मैंने क्या किया, वो गरम गरम जो ग्लास था वो अपने सीने से लगा लिया। और वो जब मैं चलती चल चल के आ रही थी और वो चाय जो है मेरे सीने पे गिरती जा रही थी, गरम चाय। और जब मैं घर पहुंची तब तक मेरे जो सीने का भाग है वो मतलब पूरा लाल हो चुका था, लेकिन मैंने वो ग्लास नहीं छोड़ा था। बहुत छोटी थी, ये भी नहीं थी कि चलो छोड़ दो ग्लास, जैसे बच्चे होंगे तो बोलेंगे अरे मैं क्यों करूं, छोड़ दो। मैं ला करके उस ग्लास को बुआ के हाथ में पकड़ाया और जोर जोर से रोने लग गई, क्योंकि वो पूरा जल चुका था। तब मेरी मम्मा आई और आकर के उसने देखा तो पूरा वो मेरा ये पार्ट पूरी तरह से लाल हो चुका था। और मुझे याद है कि मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आ गया था, शायद मेरी मम्मा को भी याद नहीं होगा, उनको आंसू आ गया था कि वो बोली कि बाप रे तुमने क्या किया, पूरा जल गया तो ग्लास छोड़ देती। लेकिन दिमाग में था कि नहीं, जो काम मुझे दिया गया है ना उसको मैं आराम से कर दूं। तो बहुत ही
इस टाइप की थी, जैसे सब लोग बोलते थे कामकाजी टाइप की, जो काम दो कर दूं। और जो बड़ी वाली बहन थी वो क्या करती थी, भाग जाती थी, वो इधर भाग जाए उधर भाग जाए, पड़ोसी के पास भाग जाए, उसके भी काम की जिम्मेदारी मैं ले लेती थी। एक तरह से समझो कि उसके नाम पे मैं काम बहुत सारा कर लेती थी। और पापा जो है उसके, जैसे उसको कहीं जाना होता था तो वो मेरा ही नाम बोलती थी कि मेरा घर का नाम संगीता, तो बोलती थी कि संगीता के साथ जा रही हूँ, तो पापा छुट्टी दे देते। लेकिन मतलब मेरी इमेज ऐसी थी कि ये बिल्कुल सही रास्ते पे चलेगी, ये गलत नहीं करेगी, ओबीडियंट रहेगी। तो पूरा समझ लो कि ऐसा ही पूरा माहौल था कि ओबीडियंट टाइप की बन के रहना है। तो ऐसे मुझे एक दो किस्से याद हैं, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये दिमाग में एक छवि छोड़ जाते हैं जो याद हैं। और आपने जो ग्लास पहुंचा दिया गरम में भी, लेकिन आजकल के बच्चे तो टच करेंगे, बोलेंगे मैं नहीं पकड़ूंगा ये ग्लास या पकड़ूंगी ये ग्लास। पकड़ूंगी, बिल्कुल। मतलब वो बचपन से बहुत सहनशीलता थी। पेशेंस था, हम्म। हम्म। धैर्य था। हाँ, वो तो आप अभी, बोल सकते, वो बहुत तो पेशेंस, बहुत कई, हद तक चीजों को बर्दाश्त करना। हाँ हाँ, हम्म। अभी तो कई लेवल ज्यादा है वो आपने, सीरियसली। हम्म। तो नेहा जी, फिर ये बताएं कि कॉलेज का पल कैसा था, मतलब कॉलेज में कैसा था आपका, हाउ वाज योर कॉलेज डेज? मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले अपनी स्कूल लाइफ से शुरू करूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घर, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो एक पापा के सर पे हमेशा एक रहता था कि हाँ, उनके ऊपर भी प्रेशर होता था कि बच्चों की शादी टाइम से कर दो, टाइम से कर दो। तो मेरे बीच वाले चाचा को बहुत ज्यादा रहता था हमेशा कि भाई भैया की जिम्मेदारी जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। तो वो हमेशा बोलते थे ये बात कि देखो तुम्हारी शादी जो है ना, वो तुम जब, हो सकता है वो छेड़ते भी हो, क्योंकि मैं तो, अपना बचपन वाला दिमाग होता है, बहुत ज्यादा हम ऐसे भी मैच्योर नहीं होते हैं। और मैं मोटी थी और मेरी बुआ भी मोटी, मैं बचपन में मोटी थी। तो हमेशा सबको डर लगा रहता था, उन्होंने एक इमेज बना रखी थी कि जैसे बुआ मोटी है, उसकी शादी होने में काफी प्रॉब्लम हुई, लड़के ढूंढना, शादी करना। तो उनके दिमाग में ये था कि अब इसकी भी शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हम लड़के ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मोटी है, लड़के पसंद करेंगे नहीं करेंगे। ये बहुत सारी बातें, पहले तो बहुत ज्यादा ही ये सब चीजें देखते थे, और आज भी, अब क्या है, अभी तो सब पता ही है। तो इसकी वजह से चाचा को लगता था ये और मोटी हो जाए, उसके पहले तो इसकी शादी हो जानी चाहिए। राइट। तो उनका प्रेशर एक सर के ऊपर मेरे रहता था कि ओके, इसकी शादी जो है वो हो जाएगी। और जब भी मैं पढ़ती थी तो मेरे अंदर एक डर होता था कि ओके, मैं 10th कर रही हूँ, और 10th के बाद हो सकता है मेरी शादी कर देनी, तो 12th के बाद तो मेरी शादी पक्का कर ही देंगे। तो ये मेरे दिमाग के अंदर सेट था। क्योंकि जब भी मैं बात करती थी तो इनडायरेक्टली मुझे, पापा के मुंह से तो मैं नहीं सुनती थी कभी भी, और छोटे वाले जो मेरे अंकल जो अभी नहीं हैं, उनके मुंह से भी मैंने कभी नहीं सुना। वो हमेशा कहते थे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है। तो क्योंकि मुझे पढ़ने से, बचपन से ही मैं थोड़ी पढ़ाकू टाइप की थी, बहुत ज्यादा पढ़ाकू। बहुत बार तो मैं रात भर पढ़ती रहती थी, पापा आते थे, मेरे सर पे हाथ रखते थे और बोलते थे कि लाइट बंद कर सो जा बेटा। मतलब बिल्कुल इस तरह से कि कभी बहुत ज्यादा पापा को फोर्स कभी करना ही नहीं पड़ा, जैसे ना बच्चों को तुम पढ़ो पढ़ो, अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेना होता था कि नहीं, मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं। तो जब मेरे दिमाग में आता था कि ओके, अब तो 12th के बाद मेरी शादी कर देंगे, तो मेरे अंदर एक डर था। वो डर मेरे अंदर एक ऐसा बैठा हुआ था कि मुझे ना पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ ना, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मेरी शादी करा दी जाएगी, मुझे पढ़ने नहीं। वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्टोर था कि मैं अंदर से एक रिबेलियस हो गई थी। मतलब अंदर से ही मेरे अंदर एक हो गया था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मेरे दिमाग के अंदर अंदर बिल्कुल सेट था। बोलती कुछ नहीं थी, लेकिन शांत रहती थी, लेकिन मेरे अंदर ये सब चीजें थी। तो मैंने 12th पढ़ाई की, उसके बाद पापा पापा को हाथ में लेके, क्योंकि पापा समझते थे कि इसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो फिर मैं अपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए गई। पढ़ाई मैंने की, फिर वहां से मैं दिल्ली आई, फिर दिल्ली में मैंने अपनी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी थी मैंने वो की। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल बीच बीच में इसके लिए करना पड़ता था कि जब मैं घर आती थी तो मेरे अंदर एक डर रहता था कि अगर हाँ। मैं घर आ रही हूँ ना, तो मुझे ये नहीं पता होता था कि इस बार शादी करा दी जाएगी क्या।
वो मेरे अंदर डर था, क्योंकि चाचा के मुंह से मैं सुनती रहती थी कि शादी करा देंगे, शादी करा देंगे। तो मैं बहुत बार डर से भी घर नहीं आना चाहती थी। मुझे लगता था कि मेरी शादी करा देंगे, मेरी पढ़ाई रह जाएगी, मेरी शादी करा देंगे, मेरी पढ़ाई रह जाएगी। तो मैं अंदर से ही अपने आप को बना रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं दिल्ली भी आई तो पापा से टाइम लिया कि मैं जो है कंप्यूटर लाइन में उतरना चाहती हूँ, मुझे 6-8 महीने का टाइम चाहिए, मैं कुछ कर लूं। शुरू से था कि मुझे ना इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि पहले का माहौल ऐसा था कि लड़कियां हो गई हैं, कमी किसी चीज की नहीं थी, घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं। हर मतलब हर चीज पापा ने जो है वो हमें जरूरत से ज्यादा दी है। शायद हम एक सोचते होंगे, पापा ने 10 दिया, क्योंकि पापा भी बहुत शौकीन, तो वो अपनी शौक पूरे करते थे, इसके साथ साथ हमारे भी शौक पूरा करते थे बहुत अच्छी तरह से, और आज भी वो वैसे ही है, बहुत शौकीन है। तो किसी चीज की कमी नहीं रही कभी भी। लेकिन मैंने सुनती थी, बोलते हैं ना कि समाज का असर आपके अंदर आता है, तो मैं सुनती रहती थी कि लड़कियां जो होती है वो एक बोझ हो जाती हैं, बस शादी कर दो और निपटा दो करके, शादी करके वो घर गृहस्थी संभाले। तो मेरे दिमाग के अंदर बचपन से ही ये चीज बैठ गई थी कि मैं ऐसा तो नहीं करूंगी कि मैं सिर्फ शादी करके फिर बच्चे पैदा करके सिर्फ बच्चे को ही देखूंगी और अपनी जिंदगी यही ऐसे ही कर दूंगी, वो नहीं था। मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है। मैं घर भी देखूंगी, फैमिली देखूंगी, सब देखूंगी, लेकिन मेरी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी होना है। ये मेरे अंदर एक जिद बोलो तो एक अपनी जिद थी, जो दुनिया के सामने नहीं थी लेकिन अंदर से एक जिद थी। तो इसके लिए वो जिद पे मैं पढ़ाई अपनी करती गई, पढ़ाई किया। फिर जब दिल्ली आई, बोर्डिंग में रही, वहां भी मैंने बहुत कुछ सीखा, फ्रेंड्स मिले। कुछ फ्रेंड्स को देख करके तेज हुई, बहुत सीधी थी, बहुत शांत टाइप की थी, लेकिन बोर्डिंग में जाकर के बहुत कुछ मैंने सीखा कि कैसे टैक्टफुली लोगों से बात करते हैं, कैसे तुम लोगों के साथ एडजस्ट हो सकते हो, बहुत कुछ मैंने बोर्डिंग में सीखा। अपनी पढ़ाई भी की साथ साथ। जब मैंने एमसीए में एडमिशन लिया, जब मेरा एमसीए हुआ, तो आप सोच लो कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था, और सेकंड सेमेस्टर में मैं जा ही रही थी कि मेरी शादी वादी को लेकर के बात चल रही थी, तो अंदर से बहुत एक डर था। तो पढ़ाई तो मैंने की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को नहीं रोका। कुछ भी हो जाता था ना कि एक जिद होती थी जैसे, और पापा बहुत साथ देते थे, अंकल भी बहुत साथ देते थे। बहुत बार रोती भी थी अंकल के सामने भी कि पता नहीं पढ़ाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो अंकल हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी पढ़ाई होगी, मैं बैठा हूँ। तो बहुत अच्छी, मतलब हमारी जो फैमिली है ना वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरे दोनों अंकल बहुत, अभी छोटे वाले तो अंकल हैं नहीं, सब बहुत अच्छे। हम जो भी भाई बहन है, यानी जो कजन है, हमें कभी लगा ही नहीं कि हम जो है चाचा के ये लड़के हैं। हमेशा बिल्कुल अपने खून से, जैसे हम अपने भाई बहन है वैसे ही ये रहा। तो बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। इन सब का सपोर्ट बोलो, चाचा का सपोर्ट बोलो, अंकल का सपोर्ट, सब कुछ बहुत अच्छा था। सिर्फ एक पढ़ाई को लेके मुझे डर लगा रहता था कि मेरी शादी कर दी जाएगी, और वो चीजें बहुत ज्यादा थी। और एक मन में, एक बचपन से एक नेचर में ये था कि आप जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो आप खुद देख रहे होते हो कि सबका नेचर अलग अलग होता है। तो हमारी जो ज्वाइंट फैमिली, उसमें भी सबका नेचर अलग अलग था। तो मैं सबके नेचर को समझती थी। अगर कोई मेरे से कुछ भी कह देता था, तो मैं वो बातें आकर के कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बोलती थी कि आपके बारे में मैंने ये सुना वो सुना। मैं हमेशा उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उनके सामने रखती थी। किसी की कोई भी बात सुनी कि मैंने सुना, क्योंकि हम छोटे होते हैं ना, तो छोटे बोलो या बड़े बोलो, हमेशा बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, वो उनके बारे में गलत नहीं सुन सकते। तो मैं कुछ भी सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने मम्मी के सामने, अपने पापा के सामने ये रूप इनका अच्छा रखूं। तो कुछ मैं उनके मुंह से भी सुनती तो बोलती नहीं नहीं, ये ऐसे हैं, ये आपके बारे में ऐसे अच्छा बोलते हैं, वो ऐसे हैं। मतलब मैं हमेशा साथ लेके चलने वाले में से थी। और जोड़ के छोटी रखना। थी, हाँ, जोड़ के। संजो के रखना, जोड़ के रखना। और भगवान से जैसे लोग प्रे करते हैं ना, तो मैं भगवान से हमेशा प्रे करती थी कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, मतलब ये बचपनों वाला प्रे रहे कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे सारे भाई बहन, हम सब मिलके ही रहने चाहिए। मेरी प्रे होती थी। लोग पता नहीं क्या क्या विश रखते हैं कि ये ज्वाइंट फैमिली में हम मिलके रहने चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। ये कहाँ से आया था ये सब मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता था
पापा के साथ चाचा मिलके हैं तो पापा को ताकत आ जाएगी, चाचा के साथ पापा हैं तो उनको ताकत आ जाएगी, तो जीवन की गाड़ी बहुत इजी निकल जाएगी। ये कहाँ से समझती, ये नहीं मालूम है। तो मुझे कभी भी पसंद नहीं था कि अलग अलग हो जाए, न्यूक्लियर फैमिली हो जाए, ऐसा एंजॉय, ये सब चीज नहीं थी कि साथ में लेके चलेंगे ना। तकलीफ है लेकिन सुख बहुत बहुत था। चाची और बहुत प्यार करने वाली, मैं मीठा खाने की बहुत शौकीन, तो सीरा बना के देगी, आंटी ये बना के खिलाएगी, मतलब बहुत सुख, ये सब चीजों का बहुत था। तो सब समझती थी, पॉजिटिव चीजें देख करके सामने रखती थी। तो पढ़ाई भी होती रही, पढ़ती भी रही, फ्रेंड्स काफी अच्छे मिले, काफी सपोर्टिव रहे। तो उनकी वजह से बहुत सारी पढ़ाई होती गई कि वो सपोर्ट करते गए, तो ये सब जर्नी काफी अच्छी रही। तो मुझे ये जानना है कि आप पहली बार अपने हस्बैंड से कब मिले? ये सब में अगर अगर हस्बैंड की बात बोलूं तो मैंने उसको पहली बार जब मैं शायद 6th या 7th में होंगी, तब मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को देखा था। और वो मैंने उसको वीडियो में देखा था, वीडियो में। क्योंकि ये मेरी शादी जो है वो रिलेशन में हुई है। तो मेरी बुआ जो है वो मेरे हस्बैंड की मामी हुई। तो मेरी बुआ एक शादी का वीडियो लेकर के आई थी, उसमें मेरे हस्बैंड, जो अभी मेरे हस्बैंड हैं, वो उस समय छोटे थे और वो गिटार बजा रहे थे। उस वीडियो में मुझे दिखाया कि देखो ये मेरी नंद का लड़का है और हम लोग सोच रहे हैं कि इसकी शादी जो है वो तुमसे करा दे। तो मैंने उसको देखा, वो उस समय ऐसे लेकिन बजा रहा था और मस्ती में प्रदीप जो है, और वो ना ऐसे करके खूब डांस करने की, ऐसे ऐसे एक्टिंग कर। तो मैंने बोला कितना मस्त, तो कितनी मस्ती है, ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है। तो उस समय एक बचपना था, तो पहली बार मैंने उसको देखा था, तो अच्छा लगा था देख के कि ओ ये मेरा हस्बैंड बनेगा। राज और वो राज। बहुत छोटे में, उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन एकदम ओके मेरी शादी ना बड़े होके इससे होगी। पता नहीं ये कैसे था, क्या था, लेकिन वो आ गया था। उसके बाद तो फिर वो किस्सा ही खत्म हो गया कि वापस हमारी शादी की ऐसी बात हो, फिर हम बड़े हो गए। फिर कुछ जब मेरी शादी की बात चलने लगी तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मेरी बुआ ने बोला कि नहीं, इस लड़के से शादी नहीं होगी, नहीं नहीं अब तुम्हारे लिए कोई और लड़का वड़का देखा जाएगा, ऐसे करके। तो फिर मैं प्रदीप से एक बार पहले मिली थी, वो मैं गई थी, और कहीं कैसे होता है, घर की बात थी ना, तो मैं अजमेर गई थी, तो वहां मैंने फर्स्ट टाइम मैं प्रदीप से मिली। वो वहां पे आया था अपने ननिहाल में और मैं गई थी अपनी बुआ के ससुराल में। तो कैसे फिल्मों वाली बात होती है, तो मैं मिली तो मुझे अच्छा लगने लगा, मैं उसको अच्छी लगने लगी, वो मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ घर वालों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बुआ की फैमिली से, मतलब उसके ससुराल वालों में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो शादी नहीं होगी। तो ये बात यहीं पे दब गई। उसके बाद मैं प्रदीप से, मुझे ध्यान नहीं है, 7 साल की 9 साल मैं प्रदीप से बिल्कुल भी नहीं मिली, अच्छा। क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। बुआ ने बोला कि नहीं इससे तो शादी नहीं होगी और कोई जरूरत नहीं है इस लड़के से कुछ भी संपर्क रखने का, ये करने का। तो ये टॉपिक हट गया था, मतलब दिमाग में ही नहीं था कि इससे शादी होनी है मेरी। और उसके बीच मेरी पढ़ाई चलने लगी, तो पढ़ाई के बीच में बहुत सारे, कैसे आप बड़े होते हो, बहुत सारे लाइफ में आप लड़के, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, बॉयफ्रेंड्स, बहुत कुछ आता रहता है। तो मेरे दिमाग में तो फिर ये तो बहुत दूर हो चुका था, निकल भी चुका था, मुझे ध्यान भी नहीं था। बचपन में पसंद था, ये बात है, लेकिन बीच के टाइम पे ये निकल चुका था मेरे दिमाग से। तब मेरी शादी की बात घर वालों ने कहीं और चलाई, और हम पहुंच भी गए एंगेजमेंट करने के लिए, समझ लो कि हम पहुंच भी गए थे। और मेरी एंगेजमेंट के कुछ दिन पहले पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फोन किया अपनी बुआ के घर पे, और ये बुआ के घर पे आया हुआ था, मतलब अपने ननिहाल आया हुआ था। तो इसने, मैंने बुआ के, पहले जो फोन होता था ना, मोबाइल नहीं होता था, वो जो डायल वाले फोन होते हैं ना, लाइन। हाँ, तो वो डायल, तो मैंने बुआ को अपने कहीं बाहर जो पीसीओ से, क्योंकि मैं बोर्डिंग में रहती थी, तो मैंने पीसीओ से कॉल किया, और इसने फोन, प्रदीप ने फोन उठाया। मैंने इतने सालों के बाद भी उसकी आवाज पहचान ली। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, और उसने जहाँ, और जैसे उसने आवाज सुनी मेरे को, तो बोला संगीता, मैंने बोला प्रदीप, मतलब चीजें जो दिमाग के अंदर थी। तो फिर उसने पूछा तुम कैसी हो, क्या हो, तो मैंने फोन पे बताया कि हाँ मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है, ये है वो है, सब बातें बताई। और मैंने उसको बोला कि और बोला तुम्हारा शादी का क्या प्लान है, तो मैंने बोला कि मेरी शादी होने वाली है। और मैंने उसको बताया कि लड़का जो है वो बाहर का है, और
वो मतलब वो कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके लिए बताया मैंने कि वो भी, तो मैं भी शादी करके फॉरेन चली जाऊंगी, मैं भी कंप्यूटर फील्ड से हूँ, वो भी है। फिर हम दोनों शादी, मतलब मेरी शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। तो उसने बोला मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, तो मेरी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके उसने बात की। तो फिर उसने मुझसे बोला कि एक काम करें, हम बहुत साल से नहीं मिले हैं, तो क्यों ना तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, मेरी शादी भी हो जाएगी, तो क्यों ना हम पहले एक बार मिल लें। तो आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो गई, 1 सेकेंड। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, मजा आ रहा है ना। वेट, वी विल कनेक्ट विद हर। कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है शायद। हाँ, आई एम एडिंग हर। अरे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना मजा आ रहा था, इतनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, पिक्चर की स्टोरी लग रही यस, थी और यस। एकदम। नहीं, कोई बात नहीं शीतल, तुम्हारी स्क्रीन बीच बीच में रुक जा रही है, शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। मेरी मेरी आवाज कट रही है क्या कहीं? नहीं ना? ठीक है। तो फिर वो दिल्ली मुझसे मिलने के लिए आया, लेकिन उस समय जहां मैं बोर्डिंग में रहती थी वहां का फोन ही खराब था। वो 2 दिन अकेले दिल्ली घूम के लौट गया, क्योंकि मैंने कुछ एड्रेस वगैरह दी नहीं थी कि तुम आओगे तो मिलेंगे। वो ऐसे ही हो गया, लौट गया। वो जब मुंबई पहुंच गया वापस, फिर मेरे हॉस्टल का जो फोन वोन है वो ठीक हो गया। उसने मुझे कॉल किया कि तुम्हारा तो फोन ही नहीं चल रहा था, तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला कि शायद हमारी किस्मत में नहीं होगा मिलना, छोड़ दो, रहने दो। शायद पापा भी मेरी ये बातें पहली बार सुन रहे हैं, ये सब बातें, छुपी हुई बातें। कोई बात हाँ। फिर उसने मुझे दोबारा बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, मेरा बड़ा दिल है कि मैं तुमसे मिलूं, तो तुम्हारी शादी भी होनी है, मेरी शादी भी होनी है, तो ऐसा करते हैं ना कि एक बार तो हम मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैं दिल्ली नहीं आता हूँ और तुम मुंबई मत आओ, हम बीच में मिल लेते हैं, शायद तब हमारी किस्मत काम कर जाए। तो मैं अपनी बहन से, मुझे मिलने के लिए जाना था, तो मैं प्रदीप से मिलने के लिए कोटा गई कि चलो उससे मिल लूंगी, फिर मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। जब इतने सालों के बाद प्रदीप ने मुझे देखा, तो मुझे प्रदीप ओके ओके लगा कि ठीक है। बचपन में ऐसा कैसा, देखो जब हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे मन में एक अलग इमेज बैठी होती है एक लड़के को लेके कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा समथिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रदीप को देख करके मैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं हुआ कि मैं अट्रैक्ट हो गई, ओ माय गॉड अच्छा ये प्रदीप है, एक्साइटमेंट थी कि उसको देखना है। लेकिन जब मैं उससे मिली तो मुझे ओके ओके लगा कि ठीक है, बस और मिलना ही तो है, मतलब एक सिंपल, और उसके बाद जाकर के मुझे शादी कर लेनी है। लेकिन प्रदीप मेरे से मिला तो पता नहीं उसका दिमाग कुछ सेट हो गया मुझे लेकर के। उसने मुझे बोला कि तुम शादी करने कहीं और जा रही हो ना, तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होगी, तुम्हारी शादी तो मेरे से ही होगी। है। और वो अच्छा। इतना श्योर था कि मैंने उसकी शक्ल देखी और मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा ये क्या बात कर रहा है, मुझे कहाँ शादी करनी है इससे। अब तो रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और मैं अपनी अलग रास्ते जाऊंगी, वो अपना अलग। अब तो बहुत दूरियां हैं, इतने साल का गैप है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद प्रदीप के दिमाग में बैठ गया कि नहीं, शादी तो इसी लड़की से ही करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। तो उसके बाद मैं उससे मिलके मैं वापस आ गई। उसके बाद उसका कॉल आने लगा और मुझे बोला कि तुम तो शादी मेरे से ही करोगी, अगर तुमने अच्छा। किसी और से शादी की ना तो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहोगी। मतलब तो ऐसी ऐसी बातें, एक एक ब्लैकमेल करना और एक डराना टाइप के। और हम बड़े इनोसेंट से होते हैं और बातों को पकड़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है, सच में मैं सुखी नहीं हुई तो शादी करके। उसके बाद उसकी फैमिली का जो है वो कॉल मेरे मतलब मेरी बुआ को आने लग गया, मेरे पापा को आने लग गया। और मेरी जहाँ शादी की बात चल रही थी वहां काफी अच्छी बातें चल रही थी, मतलब शादी वादी हो जाती मेरी। लेकिन फिर वहां से बिल्कुल मतलब बिल्कुल श्योर था कि उधर शादी लड़का आ रहा है। वो लड़का मेरे से बात करके कि हम घर ऐसा बने, बहुत बार उसने कांटेक्ट भी किया मेरे से सब कुछ। लेकिन उसके बाद इनकी फैमिली का जो ये सब आने लग गया कि नहीं नहीं हमें ये लड़की चाहिए ही नहीं, मेरा बेटा तो इससे ही शादी करेगा, जो आप बोलो, जो कुछ भी होगा, मुझे नहीं मालूम है क्या था। लेकिन मेरी बुआ ने पूरी तरह से मेरे पापा को फिर कन्विंस किया
कि नहीं नहीं ये फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बाहर शादी करके भेज रहे हो, बाहर क्या देखा है आपने, कैसा लड़का रहेगा क्या रहेगा, और ऐसे फिर करके, और फिर प्रदीप ने जो है वो फतेह हासिल कर ली कि तुमसे ही शादी होगी, उसने बोला। और वो शादी करके ही दिखाया कि शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होनी है, बाकी तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो। तो कभी क्या कभी लगता है कि क्या हाँ, डिटर्मिनेशन, जबरदस्त। मतलब इतनी डिटर्मिनेशन थी कि मैं उसको मजाक समझ रही थी, मुझे लगा कि नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे कहीं और करनी है। और मेरे दिमाग में क्या था ना कि मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मेरे दिमाग में जो एक पिक्चर थी एक एक हस्बैंड की, वो थी कि मुझे एक लड़का एजुकेटेड चाहिए जो बड़ा मेरी तरह सीरियस सा होगा, समझदार होगा, मतलब एक समथिंग मेरे जैसा कुछ काइंड ऑफ। तो मुझे लग रहा था हाँ वो एजुकेटेड लड़का है तो मुझे तो उधर ही जाना है, क्योंकि मुझे तो मैं उधर ही। लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कभी बोलते हैं ना कि रब ने तुम्हारी जिसके साथ जोड़ी बनाई होती है ना, तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में चलता है। तो उस समय फिर तो भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं थी प्रदीप से शादी करने के लिए। जब मम्मी पापा से, जब पापा ने बात बात की, तो पापा ने मेरे को फिर भी बोला कि तुमने क्या सोचा क्या है, तो भी मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगा था कि नहीं पापा जी आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो मैं इस लड़के से शादी कर लूंगी। क्योंकि मुझे खिलाफ नहीं जाना था, कुछ भी पापा के भी खिलाफ नहीं जाना था। मुझे ऐसा था कि नहीं मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे पापा को तकलीफ हो। पापा को लेकर के एक इमेज ऐसी थी कि मुझे पापा को तकलीफ नहीं देनी है तो नहीं देनी है। वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि नहीं, मतलब पापा। तो ये चीजें एक ऐसी थी कि वो बस ऐसे करते करते फिर पापा ने जब ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं ये फैमिली बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आराम से मतलब शादी हो सकती है, तो फिर मैंने हाँ कर दी। तो प्रदीप से समझो कि बचपन का प्यार और बड़े की समझ, ऐसे करके फिर शादी हो गई हमारी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया एक्चुअली। तो फिर आपकी शादी के बाद की जर्नी कैसी रही? देखो शादी के पहले जो हमारी एक समझ होती है और शादी के बाद की समझ होती है उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि लाइफ बिल्कुल अलग होती है। पहले आप अकेले होते हो और आपको मालूम होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। लेकिन शादी के बाद आप एक पूरी फैमिली को लेकर के चलते हो, आप अकेले नहीं होते हो कि आप कुछ भी करो। तो एक्चुअली जब मेरी शादी हो रही थी, क्योंकि मुझे उस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने पहले ही बोल रखा था अपने पापा को कि मेरी एक शर्त रहेगी, अगर आप बोल दो ससुराल वालों को कि शादी तो करेंगे लेकिन मेरी बेटी पढ़ेगी, वो पढ़ना चाहती है। तो मेरे पापा ने उनसे पूछा और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है इसको पढ़ना है, पढ़ाई करे। और साथ में ये भी हो गया था कि मेरे शायद इन लॉज को ये लग रहा था कि शायद इसकी पढ़ाई 1 साल की है, क्योंकि मैंने ये क्लियर चिट नहीं दी थी कि मैं कितने साल पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। तो बस मैंने यही परमिशन ली थी कि ये पढ़ाई करेगी और ये जॉब करेगी। तो ये पहले वहां से अप्रूव हो गया कि हाँ ये पढ़ेगी और फिर ये जॉब करेगी, अगर इनको ये मतलब इस काम के लिए रेडी है तो मैं शादी कर सकती हूँ। बाकी मुझे और किसी चीज से लेना देना नहीं था। और वहां से मुझे ये हो गया कि ओके ये पढ़ाई करेगी और उसके बाद ये अपनी जॉब करेगी। वहां से ये ग्रीन हो गया तो मैंने शादी कर ली। शादी के 3 महीने के बाद ही मेरे मतलब मेरे देवर की शादी हुई। मेरे जस्ट 3 मंथ्स के बाद ही हुई। और उसकी शादी के 1 महीने के बाद मेरा एग्जाम था। शादी के 3 महीने तक तो आप समझ सकते हो कि आप नए नए शादी किए और किताब खोल करके तो नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आपको सबके घर जाना होता है, नए घर को समझना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो समझने के चक्कर में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। और फिर जब वो शादी हो गई मेरी, मेरे देवर की शादी हो गई, तब उसके 15-20 दिन के बाद मैंने घर वालों के सामने ये बोला कि मेरे एग्जाम्स की डेट आ रही है, डेट आ गई है और मैं चाहती हूँ उसके कम से कम 20 दिन पहले जाना, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं की थी। तो पढ़ना तो था ही। तो तब घर में एक बहू और आ गई थी जो घर को थोड़ा संभाल सकती थी। तो मेरे लिए निकलना इजी हो गया कि मैं निकल के जाके पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैं 15-20 दिन पहले ही चली गई थी। और मैं जो मेरा फ्रेंड वहां पे, जो मेरे फ्रेंड थे जो मेरे ही साथ वाले थे, उन लोगों ने काफी हेल्प की। जिसमें से एक मेरा फ्रेंड जो अभी इस दुनिया में नहीं है, सौरभ,
उसने मुझे बहुत हेल्प की। मतलब मैं उसके आगे जाकर के रोने लगती थी और मैं बोलती थी कि सुनो, अगर मैं फेल हो गई ना तो मैं ससुराल में मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। क्योंकि आप शादी के पहले की बात अलग होती है, शादी के बाद आपकी इंप्रेशन ओके बहू फेल हो गई तो ये बहुत अजीब सी बात थी। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम दिन रात बोलोगे मैं तुम्हारे आगे बैठी रहूंगी और मैं पढ़ती रहूंगी, लेकिन मुझे पास होना है। तो मैं उसके बाद मैं वहां पे रही, उसने मुझे बहुत हेल्प की। मैं उसके घर पे ही बैठ जाती थी और बैठ करके पढ़ना शुरू कर, दिन रात मैंने पढ़ाई की। लेकिन फिर भी आप समझ लो कि 6 महीने की पढ़ाई या 15 दिन में कितने पढ़ोगे, और वो भी आप जो है एक पढ़ाई कर रहे हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप समझ ही सकते हो कि आप क्या पढ़ाई करोगे और कितनी आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत पढ़ाई थी तो भी मैं मतलब पास हुई, लेकिन एक सब्जेक्ट मेरा रुक गया। वहां पे ऐसा होता है कि आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे, फिर जो आपका पेपर रह गया है वो आप दे सकते हो, ऐसा था। तो रुक गया, तो मैंने जो सब्जेक्ट मेरा रुक गया, ये मैंने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को नहीं बताया कि मेरा ये सब्जेक्ट रुक गया है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, एक इम्प्रेशन की बात थी। बाकी बोला कि मैं पास हो गई, दूसरे सेमेस्टर में चली गई ऐसे। तो अभी अभी पता चलेगा, अभी अभी सुनेंगे। अभी सुनेंगे तो पता चलेगा कि भाई अटक गई थी एक सब्जेक्ट में। तो ये चीज ऐसी थी कि थोड़ा सा ये टाइम बड़ा हार्ड था। पहला सेमेस्टर तो फिर भी निकल गया, लेकिन जब मेरा सेकंड सेमेस्टर जिस समय था, 6 महीने के बाद वापस, उस समय मेरी देवरानी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि वो शादी के बाद जस्ट प्रेग्नेंट हो गई। तो एक मन में एक वो भी हो गया था कि कैसे छोड़ के जाऊं, कैसे निकलूं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर। और मेरी मदर इन लॉ जो है, हमारी फैमिली गुरु को बहुत समर्पित है, बहुत मानते हैं गुरु को। तो मेरी मदर इन लॉ शुरू से ही बहुत ही डिवोटी रही अपने गुरु के प्रति। तो उनका घर में उतना इंटरफेरेंस नहीं था, वो पूरा का पूरा वो अपने गुरु के ऊपर ही ध्यान होता था। बाकी इसके लिए भी था कि दो बहुएं आ गई हैं, दोनों संभाल लेंगे, तो उनका कोई काम भी नहीं था। जहाँ वो क्या, तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो मेहनत करनी थी सब कर ली थी। अब वो गुरु को पूरी तरह से समर्पित और वो अपनी सेवा पे निकल जाती थी। तो मन में थोड़ा ये हो गया था कि देवरानी की तबीयत भी उतनी अप डाउन रहती थी, तो उस समय थोड़ी घर की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली दी थी। लेकिन फिर भी वो भी करती थी, मैं भी, हम दोनों काम करते थे। फिर भी मैं एग्जाम्स के टाइम, थोड़े कम टाइम पे ही मैं फिर गई एग्जाम्स पर। वही होता था जब एग्जाम्स आ रहा है तो 15 दिन जो है वो आप पहले चली जाती थी। लेकिन अब ये हो गया था कि जब नए नए आप शादी किए होते हो तब एक माहौल अलग होता है घर का, लेकिन जैसे आप पुराने होने लग जाते हो तो आपको हर एक चीज की समझ आ जाती है। तब सिर्फ आपकी एक जर्नी नहीं रहती, सिर्फ आपकी एक पढ़ाई नहीं रहती कि ओके आप पढ़ रहे हो और सब बाकी आप कुछ नहीं करोगे। तब मेरे लिए थोड़ा सा ये हार्ड हो गया था पढ़ना, इसके लिए कि आपको जो है पति को भी वक्त देना है, क्योंकि पहले तो ये सब सोचा ही नहीं था कि पति को भी टाइम देना होता है, ये सब दिमाग में नहीं रहता है कि पति टाइम मांगेगा तो वो अगर ऑफिस से आ रहा है तो आपको उसके साथ बैठना है। जब आपके ससुराल वाले साथ में है, सास है ससुर है, तब आपको उनको टाइम देना ही है, आपको कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने शादी की है। तो ये सब चीजें जो है ना वो अब मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई पे जो मुझे फोकस होना था मैं नहीं कर पाती थी। और रात का टाइम बहुत बार होता था कि क्योंकि पढ़ने के लिए बैठूं तो कभी कोई बात होती थी, कभी कुछ होता था, कुछ कुछ परेशानियां थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को लेकर के आने लगी थी, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए ना, वो नहीं हो पाता था। तो बहुत बार मैं ऐसा करती थी कि रात में जब मेरे हस्बैंड सो जाते थे तो मैं बाथरूम की लाइट जला के बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे दिमाग में था कि मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगी। तो मैं मतलब मैंने अपनी पढ़ाई जो भी की है ना, बाथरूम ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे तो बाथरूम ने मेरा बहुत साथ दिया कि सब लगता था ओके बाथरूम में, और मैं अपनी पढ़ाई कर लेती थी करके, और आके फिर सो जाती थी कि भाई चलो हस्बैंड सो गया है फिर आके सो जाओ। तो ऐसे करके काफी मैंने पढ़ाई की किसी भी तरह से। बहुत बार तो मेरी पढ़ाई ऐसी होती थी कि किचन में पढ़ाई चल रही होती थी, किचन में किताब मेरी खुली होती थी। मतलब पढ़ाई को लेकर के मैनेज भी करती थी, पढ़ती भी थी। ये नहीं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ था, लेकिन एक अंदर से एक जुनून था कि नहीं मुझे पढ़ना है, चाहे वो कुछ भी हर्डल्स आए मुझे पढ़ना है। तो वो सब कुछ नेचर। फिर एक आप ज्वाइंट फैमिली में हो जहाँ पे दो बहुएं हैं घर में, दो बहुएं, एक एक बहू ऐसी है जो पूरी तरह से घर को समर्पित है, जो पूरी तरह से घर देख रही है, और एक आप हो जो आप ये सोच रहे हो कि आप घर भी देखो, काम भी करो, पति को भी देखो। तो आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक मशीन नहीं हो।
राइट। तो पहले पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती थी सब कुछ मैनेज करने की। तो मैं देखती थी कि जब मैं पूरा घर का काम कर रही हूँ, तो जो मुझे मेरी डेवलपमेंट के लिए जो पढ़ाई करनी है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। अगर हस्बैंड को बहुत खुश कर रही हूँ तो मैं अंदर से रो रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को खुश नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो मैनेज करना था कि पति को देखना, परिवार को देखना, सबको खुश रखना, तो सबको खुश नहीं रख पाती थी। मतलब जो रियल, जो आप बोलोगे सच्चाई की, अगर आप बैठ के घर वालों से भी बात करो तो बोलो कि इसने कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, तो शायद उनके हिसाब से ये होगा कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जो है सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करते हो, आप सिर्फ कोशिश करते हो, लेकिन आप सबकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर सकते हो। कोई भी इंसान किसी की उम्मीदों पे तभी खरा उतर सकता है जब इंसान खुद को मार दे, यानी जो सिर्फ दूसरों के लिए जिए, जो अपने लिए जीना छोड़ दे, वो दूसरों की उम्मीद पे खरा उतर सकता है। ये मैंने जीवन में सीख लिया था। तो स्टार्टिंग में बहुत परेशानी होती थी, सिर्फ मेरी कोशिश होती थी कि हाँ मैं दौड़ दौड़ के किचन में पहुंच जाऊं, किचन का काम कर लूं, ताकि घर वालों को लगे कि मैं कुछ तो कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे करके बहुत मैनेज करने की कोशिश की, कैसे भी करके पढ़ाई जो है वो, जो मेरी इंजीनियरिंग लाइन थी उसको मैंने कंप्लीट किया, जॉब पे लगी, जॉब भी लग गई, जॉब भी किया मैंने, स्टार्टिंग में जॉब भी किया। फिर जॉब जब मैं कर ही रही थी, तो उस समय मेरी देवरानी की बेबी को प्रॉब्लम हो गई थी, उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है। तो वो बच्चा छोटा था, उसको लेके बॉम्बे साइड जाना था कि डेली, तो फिर घर कौन देखे, कभी भी जाना पड़ता था, कभी सुबह को कभी दिन में। तो मेरे लिए फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था कि अगर वो चली जाएगी तो घर को कौन देखेगा, तो शायद वो किसी को ध्यान में भी नहीं होगा। और मैंने उसके बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। तुम कैसी लड़की हो, सिर्फ तुम अपने बारे में सोचोगी, या छोटा बच्चा तुम्हारी फैमिली में आया है, इस समय उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए है, तो तुम इतनी स्वार्थी तो नहीं बन सकती अपने लिए कि तुम सिर्फ अपना सोचो। तो उस समय मैंने क्या किया था कि एक ऐसी जॉब ली थी कि जो मैं घर भी थोड़ा देख सकूं, और फिर मेरी देवरानी निकल के जा सके, कुछ फ्लेक्सिबल टाइप सा हो। फिर मैंने वो करना शुरू किया कि थोड़ा सा उसको मैनेज हो जाए, वो निकल, जब वो निकले तो मैं पीछे से मैं मैनेज करूं, ऐसे करके फिर मैंने किसी भी तरह से मैनेज करने की कोशिश की। और बस ये मैनेज समझ लो कि मैनेज ही लाइफ का काम ही है, लाइफ में आप सिर्फ मैनेज ही करते हो सब कुछ। नहीं, बट ये कितनी इंस्पायरिंग बात है आपसे, ये कितनी बड़ी चीज है आपसे सीखने के लिए कि किस तरह से आपने हर सिचुएशन पे एडजस्ट करके सिचुएशन को वही रोका नहीं, मतलब पढ़ने को रोका नहीं और जॉब करने को रोका, अपने सिचुएशन को सबको ध्यान में रखते हुए अपने चीजों को सिचुएशन को चेंज करते रहे। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा है, जिसमें सब भी खुश, आप भी खुश, और सब मतलब विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो हम्म। ये जो आपने सोच विचार किया और ये जो आप कर रहे हो, ये आजकल लोग नहीं करते हैं, उसकी वजह से ही आजकल ये सब ज्यादा हो रहे हैं। लोग बिल्कुल। अलग हो रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है, फैमिलियों में आपस में उतना प्यार नहीं है, क्योंकि ये समझ ही नहीं हो रही है, ये समझ ही लोगों की साथ नहीं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ लूप होल्स हैं, तो ये लोग भरना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि वो भरे, ये सोचते हैं कि ये भरे। तो दोनों भी अगर भरे तो फिर ये चीज और अच्छे से हो सकती है। तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से, और आई एम श्योर कि आपकी ये बात सुन के बहुत लोगों को समझ जाएगा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो परिवार वालों को भी हमें ध्यान में रखते हुए अगर हम कर रहे हैं तो हम हर चीज बैलेंस कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट, आई नो कि वो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, आप भी बहुत कुछ आपने फेस किया होगा, आई एम वेरी श्योर, बट वो मुश्किल भी नहीं है, राइट? तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आई एम वेरी श्योर कि ये इससे बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो फिर नेहा जी मुझे बताएंगे कि फिर आपके बच्चे होने के बाद आपकी जर्नी कैसी थी? जब जिस समय मैं, मतलब जब मुझे बच्चे हो गए तो मुझे ये मालूम था कि अगर अब मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं फुल डे तो नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी मुझे ऐसा ही, क्योंकि आप, अगर मैं जिस लाइन में थी, सॉफ्टवेयर लाइन में हो, इसमें प्रोग्रामिंग होती है, तो मेरे साथ ये था कि जैसे हर कोई बोलेगा अरे इतनी पढ़ी लिखी घर में बहू आई है और वो कुछ कर नहीं रही है, तो ये भी बात बड़ी अजीब सी थी।
लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मैं सुबह से जॉब करने के लिए निकल जाऊंगी और रात में 9-10 बजे आऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। जबकि हमारी ज्वाइंट फैमिली थी और मेरी देवरानी घर में, मेरी सास घर में, और वो बहुत अच्छी तरह केयर करती थी, लेकिन मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखूं सुबह से रात तक, कुछ भी नहीं देखूं, तो वो नहीं चल सकता ना। जब तक मैं घर आऊं 10 बज जाए, क्योंकि कभी कभी तो रात रात में भी प्रोग्रामिंग के काम होते हैं, क्योंकि ये लाइन आईटी लाइन ऐसी होती है कि दिन और रात दोनों टाइम काम होते हैं। तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, ये काम अगर मैं करती हूँ और इस फील्ड में मैं जाती हूँ, इसको कंटिन्यू करती हूँ, तो फिर मेरी फैमिली बिल्कुल छूट जाएगी, मतलब मेरी फैमिली लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ जॉब पे ही रह जाओगे, और आपको सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आप अर्निंग हो, आप कमा रहे हो, बाकी आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फैमिली का सुख नहीं मिलेगा, फैमिली वालों को आपसे सुख नहीं मिलेगा। घर में बहुत तरह के तनाव बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े, क्योंकि आप अगर अपना कुछ दोगे ही नहीं, कुछ भी आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, आपका कंट्रीब्यूशन तो चाहिए घर में। अगर आप नहीं करोगे तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। घर के जितने मेंबर मिलके रह रहे हैं फैमिली में, उन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा तभी घर चल सकता है, एक से घर नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन ये होता है कि किसी का कंट्रीब्यूशन साइलेंट होता है और किसी का दिखता है, तो शायद मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत साइलेंट रहा, पता नहीं चला। वैसे ही घर के हर एक मेंबर का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत रहा है। तो इस तरह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरे टाइम का काम तो नहीं कर सकती हूँ, और पढ़ी पढ़ाई भी बहुत की थी, और मन बड़ा खाता था। मन खाता था बहुत बार, तो मुझे याद है कि मैं मंदिर के सामने बैठ करके रोती थी और ये कहती थी कि परमात्मा, क्या मैं सिर्फ इसके लिए हूँ? अगर मेरी जीवन का मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो उससे अच्छा तो मुझे उठा ही ले, क्योंकि मैं मतलब कुछ नहीं कर रही तुम लाइफ में। मैंने इतना बचपन से मैं एक दिमाग में एक चीज लेके चल रही थी, बड़ी हुई तो इतना टाइम लगाया शादी करने में, पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया, घर वालों को पापा ने कैसे देखा होगा, कैसे पैसे मैनेज किए, सब कुछ मेरे अंदर था। और मुझे था कि अब जाके तुम क्या कर रही हो लाइफ में, इतना पढ़ लिख करके बस अब बैठ जाओ शांति से। वो चीजें ना मन को बहुत खाती थी मेरे, और मुझे लगता था कि नहीं, मैं ये तो नहीं, मैं अपने साथ ये जाती नहीं कर सकती, मुझे कुछ तो करना है। तब तक जहां मैं पहले रहती थी वहां हमारी एक पड़ोसन, हमारी आंटी, और वो आंटी मेरे लिए मार्गदर्शन बनी। उन्होंने मुझे क्या बोला कि नेहा, तुम ये सोच रही हो कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम कुछ करोगी, तो वो दिन कभी नहीं आएगा, ये वक्त आज है, जो तुम्हें करना है आज करना है। वो बात पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे घर की क्या की, वो मुझे सोने नहीं देती थी, वो बात कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना है। तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आई कि मैं क्या करूं। तो मैं अपने मन को ना खुश रखने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे, मतलब कीर्ति बहुत छोटी थी, शायद 6 महीने की थी, या मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा, मतलब बहुत छोटी थी, और मैं ये सब अपना काम करती रहती थी, अपना अपना काम छोटा छोटा। तो मैं योगा करती रहती थी, योगा भी करना मेरा साथ में, और भी बहुत सारे काम पहले से ही चल रहे थे मेरे ये सब काम तो। लेकिन मेरी एक भाभी है, उन्होंने मुझे योगा करते हुए देखा, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो बहुत अच्छा योगा करती हो, क्योंकि मैं बोर्डिंग में थी। मैं मतलब जब मैंने 12th किया, 12th तब से मैं योगा कर रही हूँ, पता नहीं कितने साल अभी हो गए, अभी तो 28-29 साल लगभग हो गए होंगे मुझे योगा करते हुए। तो तो वो मुझे देख करके बहुत ही उनको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, तुमने मतलब अभी कीर्ति, अभी तो पवन भी नहीं हुआ था, कीर्ति की ही बात बता रही हूँ कि तो उन्होंने मुझे देखा कि अरे तुमने 6 महीने के अंदर अपनी बॉडी को वापस वैसे कैसे बना लिया, कि 4 महीने या 5 महीने की कीर्ति थी मेरे ख्याल से, ऐसा मतलब छोड़ मेरी बेटी। और मैं आपको वापस, जो मेरी बॉडी भर भर गई थी, उसको मैंने वापस बिल्कुल पुराने शेप में लाके रख दिया था। तो बोली कैसे तुमने ये सब किया? तो मैंने बोला कि मैं अपने लिए डेली योगा करती हूँ, और जो मेरे को योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीजें बहुत पहले से ही थी अंदर से। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मुझे भी कराओ। तो मैंने उनको कराना शुरू किया, उनको इतना अच्छा लगने लग गया कि उन्होंने बोला कि एक काम करोगी, मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी कराओगी। तो मुझे लगा वैसे भी कुछ तो कर नहीं रही हूँ, और मेरे दिमाग के चलो इस बहाने कुछ तो करूंगी, मेरा दिमाग तो हटेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। ऐसे फिर मैंने क्या किया कि इस तरह से उनको सिखाना शुरू किया कि चलो उनकी फ्रेंड्स को सिखाओ। और वो जर्नी मेरी जो सिखाने की शुरू हुई, तो मुझे लगता था ओके, 1 घंटा तो कोई मेरे बच्चों को देख सकता है, ऐसा मन में कि घर ज्वाइंट फैमिली है। तो फिर मैं घर पे बच्चे बच्ची को छोड़ करके फिर जाती थी, और जाकर के
उन सबके साथ योगा करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। उनके आगे बैठ के भगवान की बातें करती थी, क्योंकि बचपन से ही ना भगवान भगवान बहुत ज्यादा था। बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो मैं पापा और मम्मी को देखती थी तो मेरे दिमाग में एक चीज बैठी थी कि मैं तो शिव से ही शादी करूंगी। तो शिव हमेशा, मतलब उतनी अक्ल नहीं थी कि शिव से कैसे शादी होगी, लेकिन शिव को ही समझती थी कि शिव से ही शादी करूंगी। ऐसे मेरा दिमाग जो है ना भगवान के प्रति बहुत था। उसके आगे बैठ जाना, भगवान को याद करना, आंख बंद करके, छोटे से ही दुर्गा सप्तशती पढ़ना, बहुत छोटी थी। और पैदल पैदल पूरे मंदिर घूम लेना, पता नहीं क्या था, मालूम नहीं है, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था मेरा। तो वही जो मन में जो भगवान के प्रति जो भाव था वो बना ही रहा। और जो जैसी जैसी सिचुएशंस आती गई, तो उससे शायद और मैं भगवान पे बहुत ज्यादा ही मतलब समर्पित होती चली गई। और शायद उसी समर्पण ने ही मुझे एक नया रास्ता दिया कि तुम जो है ये काम करती रहो। तो मैं भगवान की बातें करती थी। भगवान की बातें करते करते पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम क्या क्या होता गया, मेरी लाइफ टोटली चेंज होती गई। क्लास स्टार्ट हो गई, योगा क्लास भरने लग गई, और सब कुछ, कुछ प्लान नहीं था, सब कुछ ऊपर वाला जैसे मेरे लिए प्लान कर रहा हो। ऐसे ही क्लासेस लेना, स्पिरिचुअल लेक्चर्स लेना शुरू हो गया। उसके बाद जो है मेरी एक पढ़ाई जो खत्म हो गई थी इंजीनियरिंग की, उसके बाद मेरी स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई शुरू हो गई। मैंने दुनिया भर के कोई ऐसे कोर्स नहीं होंगे जो मैंने नहीं किया, सब कुछ करती जाती थी, मतलब। पर ऐसा नहीं है कि बड़ी स्मूथली सब कुछ हो जाता था। किसी ना किसी तरह से झूठ बोल करके करना, झूठ बहुत बोले हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, मैंने बहुत झूठ बोला है। और मतलब मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ करना होता है तो झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है, जो तुम नहीं चाहते हो तो भी लेना पड़ जाता है। तो मैंने अपनी पढ़ाई को लेकर के, बस 1 महीने की बात है और ऐसे करके 6 महीना ये निकाल लिया। अच्छा, 2 दिन का कोर्स है, फिर मैंने ये कर लिया। ऐसे करते करते मैंने मतलब बहुत झूठ बोले हैं, हस्बैंड से भी पढ़ाई को लेकर के बहुत झूठ बोले। लेकिन हस्बैंड बहुत ही इस मामले में सपोर्टिव रहा। वो समझ जाता था इसको और कुछ तो चाहिए नहीं, पढ़ना ही चाहती है, तो वो पढ़ने भी देता था, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे समझ बढ़ती गई, उसने बहुत हेल्प की। और एक जो डिटर्मिनेशन था कि मुझे कुछ करना है, वो जो जोश आता है ना देख करके, नहीं मुझे कुछ करना है। तो जब मैं पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे लिए जो हमेशा लगता था कि मुझे पापा जैसा बनना है, पापा जैसा बनना है, वैसे ही जब मेरी शादी हो गई, तो मैं बहुत ज्यादा जो इंस्पायर होती ना, वो मैं अपने फादर इन लॉ से होती। मतलब मेरे लिए मेरे फादर इन लॉ ना एक आइडियल, जैसे पापा एक आइडियल थे, उसके बाद शादी के बाद मुझे लगता था कि पापा ऐसे करते हैं, पापा पहाड़ी जाते हैं, पापा मेडिटेशन करते हैं। मैं नहीं जानती हूँ ये क्या था कि, और ऐसा भी नहीं था कि जैसे कि पापा गुस्सा नहीं करें या मेरे फादर इन लॉ गुस्सा, उनको गुस्सा मतलब चिल्लाना मिल्लाना नहीं होता था। वो देख देंगे तो समझ में आता था क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। लेकिन मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती, उनके काम करने का ढंग। और फिर मैं उनको देखती थी, मैं बोलती थी कि ये नहीं थकते हैं तो मैं कैसे थक सकती हूँ। मतलब ये अंदर से एक जोश था कि ये कैसे करते हैं, ये ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, ये अपने लिए पहाड़ी पे भी ध्यान दे रहे हैं, ये भी ध्यान दे रहे हैं, ये अपनी वाइफ। मैं बोलती थी ये एक इंसान इतना कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मेरे अंदर ना एक जोश भी रहता था कि नहीं मुझे कुछ करना है, और डेडिकेशन बहुत था। कुछ करना है, वो तो बचपन से ही था, करना है तो करना है। तो परेशानियां कुछ भी आती रही, तो मैं सब कुछ करती रही, झूठ बोल के, सच बोल करके, चार बातें भी सुन करके। ऐसा नहीं है कि हर चीज स्मूथली हो, मालूम भी होता था कि अच्छा बहुत सारी चीजें नहीं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, आप घर में बैठ करके घर वालों के लिए कुछ करोगे नहीं, आप सोचोगे मेरा हो, मैं मेरी पढ़ाई करूं। ऑब्वियसली घर वालों को बुरा लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए फैमिली को चलाने के लिए। तो मैं 100% बोलो मैं नहीं देती थी। हाँ, मैं ये काम करती थी कि जैसे सुबह से शाम तक मेरी देवरानी किचन देखती थी, तो शाम से रात तक मैं देखती थी। तो हम दोनों को एक सपोर्ट हो गया था, उसको मेरा सपोर्ट मिल जाता था, वो अपनी बेबी को देख सकती थी। और मैं जो है अब सुबह से शाम तक अपने लिए काम कर सकती थी, शाम से लेकर के रात तक फिर मैं जो है घर वालों को देख सकती। तो एक बैलेंस एक तरह से आ जाता था। 100% तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो कर देती थी कि चलो कुछ कर, एक खुद को एक सेटिस्फेक्शन हो कि तुम इस घर के लिए कुछ कर रहे हो और फैमिली को लेके चलना है। तो ये इस तरह से मैंने कोशिश की कि पढ़ाई करती गई, डिग्रियां लेती गई, पता नहीं क्या 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 करती गई, वो तो पूछो ही मत, अभी तक कर ही रही हूँ। कभी पढ़ाई तो मेरी छूटती नहीं, और जब तक शायद मैं हूँ जिंदा तब तक पढ़ाई चलती ही रहेगी।
बहुत अच्छा। एक सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी, सबसे बढ़िया, आपने इतनी पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग करके, वो आपने वो जीएनआईटी वो सब करने के बाद, बच्चे होने के बाद आपने पूरा लाइन ही चेंज कर दिया। तो ये जो आपने किया ना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि आपने क्या किया कि वो शिफ्ट कर दिया पूरा ही, ताकि वो बच्चों को भी आप देख सके और घर के इसमें भी आप वो कर सके और अपना काम भी कर सके। तो ये शिफ्ट किया ना, लाइक दिस वाज माइंड ब्लोइंग। और इस ये जो आप, आपका जो डिटरमिनेशन है, फिर जीरो से स्टार्ट करना, वो फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना हुआ ना, फिर आगे आपको उतनी और बिल्कुल। पढ़ाई करना और सब कुछ। फिर आपने ये नहीं सोचा कि मैंने इतना पढ़ा और वो सब जीरो हो गया, अब मैं दूसरा जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज आप में वो जुनून था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। रियली मतलब सुपर, इट इज सो इंस्पायरिंग। मतलब ऐसे कोई यहाँ नहीं पहुंच जाता है, इसके हाँ पीछे बहुत। इतनी बिल्कुल। मेहनत, इतना कुछ संघर्ष और इतना सैक्रिफाइस और इतनी चीजें होती है, तभी वो इंसान वहां पहुंच पाता है। राइट, हाँ बहुत मतलब। बहुत ज्यादा। जब बहुत बार जो जान पहचान वाले या बहुत लोगों को लगता था ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये पूरा सब करियर छोड़ करके ये वापस ऐसे जीरो से ये क्या स्टार्ट कर रही है। लेकिन लगता था कि अगर मैंने पुरानी लाइन को पकड़ के रखा ना तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी, मैं बिल्कुल घर नहीं देख पाऊंगी, मैं बच्चे बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी। कम से कम एक सेटिस्फेक्शन था कि जो भी मैं देख पा रही बच्चे, कम से कम मैं देख तो पा रही हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं 100% बच्चों को देख पा रही थी, लेकिन मैं जो देख पा रही थी, एक होता है ना कि एक होता है क्वांटिटी टाइम, एक होता है क्वालिटी टाइम। मैंने हमेशा क्वालिटी टाइम पे वर्क किया कि जब लगता था कि मुझे मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है तो मैं रात में भी उनके साथ बैठ करके बात करती। और आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि कभी कभी बहुत थक जाऊंगी, मुझे सुबह उठना रहेगा, लेकिन मेरी डॉटर मुझे पकड़ेगी, मम्मा बैठो मेरी बात सुनो। तो मैं जैसे अगर मेरा हस्बैंड मुझे बुलाएगा भी तो मैं अपने हस्बैंड को इग्नोर कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहना चाहता है, पहले मुझे सुनना है उसकी बात। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी बात सुनूं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो मेरे से नहीं शेयर करेंगे तो किससे करेंगे। तो मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ। मैंने बोला ना कि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन सिर्फ मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैनेज कर पाऊँ। कितना मैनेज कर पा रही हूँ या दूसरों को क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम सबकी तकलीफें नहीं खत्म कर सकते, लेकिन तकलीफ ना हो उसके लिए जरूर काम कर सकते हैं। दैट्स तो नाइस। बस वो कोशिश कर रही हूँ मैं। आपके इंटेंशंस कितने अच्छे हैं। ये इंटेंशंस ही तो घर को जोड़ के रखता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो नेहा जी, मुझे मेरा अगला सवाल ये है कि अ, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल डालने का जब आपने सोचा कि डालना है, तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ा उस चीज में, और बच्चे रेडी हो गए या उनको भी मनाने के लिए आपको क्या क्या फेस करना? मेरे दिमाग में बचपन से ही था, क्योंकि मैंने बोर्डिंग लाइफ देखी थी ना, तो मैं बड़ी सीधी सीधी पहले मैंने बोर्डिंग्स में, मतलब जब मैं बोर्डिंग गई, अलग अलग, मैं बहुत अलग अलग जगह पे रही, तो मैंने वहां पे जो कलर्स देखे ना लोगों के, कि कितने तरह के लोग होते हैं, कैसे एडजस्ट करना है। पता है मेरी लाइफ में सबसे अच्छी चीज क्या रही? मैंने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया है, सबको देखा है और सबसे सीखने की कोशिश की, और आज तक मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं ट्रेन हो गई हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। मैं बार बार क्या बोलती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ना लोगों को इतना ऑब्जर्व किया कि मैंने कोई कभी भी आज तक बोर्डिंग में मैंने किसी से फाइटिंग नहीं की। कोई गलत करता था तो मैं सीखती थी, ओके ये गलत कर रहा है, अच्छा मुझे कैसे ये गलत नहीं करना है। अच्छा वो ये चालाकी इस तरह की होती है, ओके तो मुझे कैसे ये चालाकी नहीं करनी है। मतलब मैं गलत चीजें देखती थी, लेकिन मुझे कैसे गलत नहीं करना है, फिर मैं वो रास्ते पे चलती थी। पता नहीं ये दिमाग कहाँ से था, इसके लिए गलत कभी किया नहीं, हमेशा एक सही रास्ते पे रही। और जो चीजें मैंने सीख ली थी कि एक एडजस्टमेंट क्या होती है, वो मैंने बोर्डिंग में ही सीखा। आप रूम में 4 लड़कियों के साथ रहते हो, कभी 5 लड़कियों के साथ रहते हो, ग्रुप में रहते हो, सबके अलग अलग दिमाग हैं। कोई काम करता है, कोई हॉस्टल में नहीं काम करता है, कभी कभी आपको भी उसके हिस्से का काम करना पड़ता है। मतलब मैंने इतना माहौल देखा था कि मेरे दिमाग में था कि अगर ये चीज है
मुझे ना मेरे बच्चों को ट्रेन करना है, क्योंकि बच्चे दुनिया को आजकल जो हम देख रहे हैं ना, बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली होती है। उसमें बच्चा रो रहा है तो माँ बाप वो चीज पकड़ा देंगे, बच्चा रो रहा है माँ बाप ये दे देंगे। तो बच्चा परेशानियों को सॉल्व करना ही नहीं सीखता। जो बच्चों को जो चीजें फेस करनी चाहिए, जो कैसे आप किस सिचुएशन में कैसे रहो, वो फेस करना बच्चा नहीं सीखता है। तो मेरी आवाज आ रही है शीतल? एकदम परफेक्ट। ओके। तो बहुत बार ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि ये चीजें मैं इसको घर में तो नहीं सिखा पाऊंगी, इसको माहौल ही सिखाएगा। तो छोटे से ही मैंने बच्चों के दिमाग में एक स्टोरी बना दी थी। पता है मेरे हॉस्टल की लाइफ कैसी थी? मैं ऐसा करती थी, इस हॉस्टल में मैं ऐसा करती थी। मेरे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वाकई में मुझे बहुत अच्छे मिले। जो फ्रेंड्स है ना वो अभी तक मेरे साथ हैं। जो हैं वो ज्यादातर, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरी सीनियर दीदी, उसमें शर्मिला दीदी हैं, सुषमा दीदी हैं, मेरी एक फ्रेंड है श्वेता जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दो तीन ही है। ये जो मेरे हॉस्टल वाले फ्रेंड, मतलब जो जहां मेरे फ्रेंड है ना बचपन से लेकर के अभी तक, वो सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी जगह पे हैं, सब हैं। सबके साथ ट्यूनिंग काफी अच्छी रही। तो वो मुझे था कि इतना माहौल जो मैंने देखा, अच्छी अच्छी स्टोरी मैं अपने बच्चों को बताती थी, तो बच्चों के दिमाग में एक सेट हो गया था, वाओ हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है। तो ये जो मैंने उनके दिमाग में भर के रखा था, तो उसकी वजह से वो हमेशा रेडी। जब मैंने उनको बोला कि तुम्हें हम हॉस्टल भेजेंगे, तो मेरे बच्चे रेडी हो गए, ओके ओके हमें भी हॉस्टल जाना है, और हॉस्टल जाकर के जो है वो। 1 सेकेंड। हाँ शीतल, वो नेटवर्क की तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम, तुम्हारी स्क्रीन बहुत वो जो स्क्रीन है वो बहुत रुक रही है, पता नहीं। पता नहीं, मैं तो वाईफाई पे हूँ। पर कोई बात नहीं, रहने दो। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ, और आप ही की आवाज सुननी है, मैं तो नहीं भी दिखूंगी तब भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी आवाज सुननी है बस। ठीक। तो फिर बच्चों के जो दिमाग में मैंने डाल दिया था, तो इसकी वजह से जब मैं बच्चों को बोर्डिंग में डाला, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी चले गए। कोई रोएगा ही नहीं, मतलब वो रेडी थे, दे आर रेडी, ओके ओके हम हॉस्टल जा रहे हैं, ममा की तरह हम भी लाइफ देखेंगे। मैंने ऐसे उनको डाल दिया था। लेकिन दुनिया की नजर में ये चीजें थी, या बहुत बार मुझे लोग ने रोक के बोला, ओके नेहा जी आपका काम बहुत बढ़ गया है ना, तो शायद आपने इसके लिए बच्चों को बोर्डिंग में डाल दिया होगा। बहुत बार मैंने बहुत अलग अलग कि कैसे आप बच्चों को डाल सकते हो बोर्डिंग में, मैं तो अपने बच्चों को ना छोड़ूं, आपने कैसे छोड़ दिया। तो बहुत सारी बातें थी कि तुम ऐसा स्टेप कैसे ले सकती हो कि तुम दोनों बच्चों को बोर्डिंग में भेज दो। तो ये चीजें जो थी वो बहुत अजीब सी थी। लेकिन मुझे था कि मेरे बच्चे जो है ना, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे वो समझे, वैसे लाइफ को समझे कि लाइफ में कितनी स्ट्रगल होती है, वो थोड़ा स्ट्रगल देखे और वो मैनेज करना सीखे। क्योंकि घर में तो आप बच्चों को सब कुछ दे देते हो, लेकिन बोर्डिंग में आपको मालूम होता है कि इस टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, आपको सोप इतना मिलेगा, आपको ये ऐसे मिलेगा, आपको जो है पॉकेट मनी ऐसे मिलेगी, आपको मैनेज करना होता है। तो वो मैनेज, या सेल्फ डिपेंड होना, मतलब अपने कपड़े खुद संभालने हैं। तो मुझे ये था कि हाँ शीतल, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, ये सब सिखाने के लिए मैंने भेजा था। और ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं होती थी, एक माँ हूं मैं, पर मुझे लगता था कि मेरे दोनों बच्चे चले गए बोर्डिंग, तो बहुत बार मैं अकेली होती थी, और फिर मैं कहती थी कि भगवान तू है ना मेरे बच्चे देखने के लिए, तो मेरे बच्चे तू ही देख। जैसे मेरा बच्चा तो सिर्फ मेरा बच्चा नहीं हुआ ना, तेरा भी तो बच्चा हुआ भगवान। तो फिर जब भी मैं उदास होती थी तो मैं बोलती थी कि तू है ना उसका असली माँ बाप, तो तू है, तू मेरे बच्चों को देख लेना। क्योंकि भगवान मेरे लिए एज ए फ्रेंड, तो मैं हमेशा बोलती थी सुनो ये वाली जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो तुम पे ही डिपेंड हूँ। तो ऐसे करके जो है वो बच्चों को बोर्डिंग में रखा, और धीरे धीरे खुद को भी मजबूत, बच्चे भी मजबूत हुए। तो इस तरह से मैंने ये डिसीजन लिया था बच्चों को सिर्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिसीजन बहुत कठिन होते हैं लेकिन वो लेने से बच्चों का भला ज्यादा होता है उसमें।
तो ये एक्चुअली आप जो बोल रहे हो ना, क्योंकि इसमें उन उन लोगों कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले हैं और वो बहुत कुछ देख रहे हैं प्रैक्टिकली, कितने लोगों से कैसे डील करना है वो लोग खुद अपने बेसिस पे सीख रहे हैं। ये बहुत बहुत लर्निंग है उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आपके फ्रेंड्स का आप कुछ बताएं कि आपकी फ्रेंड्स की जर्नी कैसी थी, मतलब आपके फ्रेंड्स कैसे थे और कैसा है आपके फ्रेंड्स के साथ कनेक्शंस है अभी कि क्या? देखो, जो मेरे स्कूल के जो फ्रेंड थे वो मुझे अभी पिछले साल मिले। मतलब जो मेरे स्कूल के फ्रेंड थे उससे मैंने, यानी कि जो मेरे फ्रेंड 10th में थे, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से सीधे इतने सालों के बाद मिली हूँ। यानी कि मैं लास्ट ईयर उन सब से, ये एफबी और इन सब की वजह से मिल पाई। तो वो चैप्टर 10th के बाद ही वहीं पे क्लोज हो गया था। उसके बाद जब मैं बोर्डिंग गई तो बोर्डिंग वाले जो भी, जहां भी मैं रही, उनके फ्रेंड से संपर्क था। मेरा संपर्क मतलब मेरी कोई बात किसी से नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने आप को खड़ा करने में इतनी बिजी थी कि मैं दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाल सकती थी। मैं दोस्तों से बातें करना, ये करना, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो जो बोर्डिंग के जैसे दो तीन, जैसे एक सुषमा दीदी हो गई, वो भी मुझे अभी लास्ट ईयर मिली। एक शर्मिला दीदी मेरी एक फ्रेंड रही, वो मुझे, उनसे मैं साल में एक बार बात करती थी, सिर्फ उनके बर्थडे पे विश करने के लिए, या वो मुझे बर्थडे के लिए विश करने के लिए। बाकी मेरी शादी के बाद की जर्नी में मेरे जो पहले वाले दोस्त में कहीं नहीं कोई रहे, जिससे पता नहीं कि तुम बात कर रहे हो, दोस्तों से कोई बात शेयर कर रहे हो, कुछ भी। मेरी लाइफ में जो मेरा, आप बोलो कि शादी की जर्नी के बाद कोई एक फ्रेंड के रूप में रहा, वो मेरी देवरानी रही। मतलब मेरे वाह। लिए मेरी देवरानी ही होल एंड सोल, सब कुछ राइट। मेरी वो। क्योंकि उसने जो मेरे बच्चों को संभाला, क्योंकि मैं बाहर जाती थी और वो मतलब शायद वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती। उसे मालूम था कि इनको एक जुनून है, इनको कुछ करना है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती। तो इसके लिए ना वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट। यहाँ तक कि वो मेरे बच्चों को देखती थी, शायद उसने मेरे बच्चों को कभी भेद नहीं किया, और शायद एक माँ की तरह बच्चों को पाला। शायद उसके माँ की तरह मेरे बच्चों को पालने की वजह से ही मैं बहुत कुछ कर भी पाई। शायद वो मेरे बच्चों को वो प्यार नहीं देती, तो शायद मेरा ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा रहता कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं करती रहती। तो उसने जो मुझे जो भी तकलीफ होती थी या जो भी मुझे परेशानियां फेस करनी पड़ती थी, मैं क्या करती थी, उससे आके बोल देती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हुआ, ये सिचुएशन हुई। मतलब मैं अपनी बातें जो है एज ए शेयर फ्रेंड, कैसे तुम किसी से शेयर करते हो, तो मैंने उससे शेयर की। तो हर चीज मैं उसी से शेयर करती थी, क्योंकि मुझे ना एक तरह से ये बोलो, मुझे ये पसंद भी नहीं था कि मैं अपनी बातें बाहर की दुनिया में कुछ बोलूं। हमेशा मुझे ये लगता था कि मेरे लिए मेरी जो फैमिली है ना, मतलब मैंने जब मेरा अपना मायके छोड़ा, तो मैंने अपने मायके को छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरा असली घर हुआ, मैंने अपने ससुराल को अपना असली घर समझा। जो मेरे सास ससुर है, मैंने उनको, अभी तक भी मेरे लिए वो मम्मी पापा ही है। मतलब कभी भी सास ससुर वाली बात नहीं होती है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बात करने वालों में से नहीं हूँ, जैसे एक होता है ना कि तुम बैठ के गप्पे कर रहे हो, ये करो, ये नहीं है। मैं अंदर की फीलिंग्स बता रही हूँ। मुझे हमेशा लगा कि नहीं, ये मेरे अब मम्मी पापा, बस बात खत्म। और हर चीज में, जब भी कोई बात होती है तो मैं सोचती हूँ, अगर इस जगह पे मेरे मम्मी पापा होते तो मैं कैसा बिहेव करती, तो ये मेरे मम्मी पापा है तो मुझे कैसा बिहेव करना है, बस ये चीज को मैं लेकर के हमेशा चलती रही। तो मैं कभी भी नहीं पसंद करती थी कि अपने घर की बातें मैं किसी दोस्त से शेयर करूं, ये करूं करूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी फैमिली की बात जो है ना, वो मेरी फैमिली तक ही होनी चाहिए। घर से बाहर, मतलब घर से बाहर का मतलब ये कि हमारे घर के पूरे मेंबर, यानी कि जो मेरे दो बच्चे, मेरा देवर, मेरी देवरानी, उसकी बच्ची और मेरे सास ससुर, हम मिला के 9 हुए, हस्बैंड को मिला के। मैं चाहती थी कि मेरे घर की बात इस 9 मेंबर से वो आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो प्रदीप के कजन है, मैं उनके कानों तक भी बात नहीं देना चाहती। मेरा वो अलग नेचर, मुझे लगता था कि नहीं, ये हमारी यूनिटी है। अगर हम लोगों को भूलेंगे ना तो हमारी यूनिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप, लोगों के समझने का ढंग क्या होगा नहीं मालूम है, वो समझ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये एक दायरा मैंने बना के रखा था। जो होगा वो इसी घर में होगा, और जो होना है वो इसी घर में अच्छा होगा, जो होगा वो इसी घर, इससे बाहर नहीं होगा। ये मेरे थॉट्स, और शायद मैं आज भी वही लेके चल रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ चीजें जो मैं अपनी लाइफ में लेके चल रही हूँ, कि मैं बाहर मैं सबको प्यार करती हूँ,
लेकिन मैं इंटरफेरेंस अपनी फैमिली में किसी और बाहर का मुझे पसंद नहीं है, कोई भी हो। बस ये मुझे लगेगा ये 9 को ही लेके चलना है तो 9 को ही लेके चलना है, 10वां मेंबर मैं ऐड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ताकत ताकत ही बन के रहनी चाहिए, कमजोरी नहीं। मतलब कोई कोई इसकी कमजोरी बना के चले वो मुझे नहीं पसंद है। इसके लिए मैं अपना काम करती हूँ, लोगों के लिए करती हूँ, लेकिन मैं बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। तो मेरे मुझे मजे करने हैं तो मेरी फैमिली ही होनी चाहिए, मतलब हम ही होने चाहिए। कुछ नहीं है तो हम चार होने, मतलब मुझे मजे का दायरा जो है ना ये होगा। ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय नहीं करती, मैं जाती हूँ, हमारे जो भी हमारा खानदान काफी बड़ा है, मैं उनके साथ मिलती हूँ, हम हंसते हैं खेलते हैं, हम सब कुछ है। लेकिन जहां प्रॉब्लम्स की बात आएगी ना वो हमारी फैमिली होनी चाहिए, ये ना होने चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे ये प्राइवेसी वाली चीजें पसंद है कि कोई भी चीज बाहर मजाक रूप में नहीं होनी चाहिए। एकदम सही, एकदम सही। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और हम्म। आप जैसे आपने आपकी देवरानी को बताया, बहुत अच्छा है। अगर देवरानी जेठानी में ऐसी बॉन्डिंग हो तो माय गॉड, वो घर तो घर से भी बेस्ट हो जाएगा, सीरियसली। मतलब बिल्कुल, किसी, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उसकी। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे अभी आप ये बताएं कि आप जो इतना दिल से काम करती हैं, इतना फोकस्ड है आप, तो वो क्या चीज है जो आपको इतना ड्राइव करती है, इतना सब, कि आप कितने लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं और आप बहुत कुछ कर भी रही हैं। तो वो क्या एक चीज है जिसकी वजह से आप अपने आप को वो कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग रखती हैं? देखो हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हम किसी मकसद से आए हैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है, अब मुझे कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, मुझे समझ आने लग गई हैं कि इस दुनिया में अगर मेरा आना हुआ है ना तो ऐसे ही नहीं हुआ है। कभी मैं अपने पास्ट को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ है उसके पीछे कोई कॉज है। और ये कॉज ये है कि जब मैं ये काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। शायद ये गोल्ड की ज्वेलरी पहन करके और डायमंड पहन करके भी नहीं मिलता, जब जो काम करके मिलता है। क्योंकि जब मैं ये काम करती हूँ और उसके बाद किसी का भी कॉल आता है या किसी का भी मैसेज रहता है ना कि नेहा मैम ये काम हो गया, नेहा मैम ये हो गया, पता नहीं क्या सुकून मिलता है। शायद वो सुकून मतलब वो सुकून के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते। तो वो मुझे इतना, मतलब ऐसा सुकून देता है, ऐसा आनंद देता है कि वो मुझे बार बार इंस्पायर करता रहता है कि तुम जब तक हो ना तुम्हें करते रहना है, तुम्हें काम करते रहना है। तो एक तो ये हो जाता है कि आपकी ऊर्जा जो है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप नहीं करोगे काम तो आप क्या करोगे? आप बैठोगे चार लोगों के बीच में गप्पे करोगे। मैं ये नहीं कहती कि गप्पे करना खराब होता है, मैं किसी चीज को बुरा नहीं मानती। सबके जीवन में अलग अलग चीजें, किसी को जो अच्छा लगता है वो करे। तो गप्पे करने का भी टाइम है, एक टाइम रखो जहां पे तुम एंजॉय करो, हंसो। लेकिन पूरा टाइम तुम बैठ के वही करो तो वो भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज बैलेंस वे में होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ओके, ये जो काम हम करते हैं ना, इस काम से सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा माइंड बैलेंस रहता है। अगर मैं बैलेंस नहीं हूं ना तो मैं दुनिया में कोई भी काम बैलेंस वाला नहीं कर सकती। और योग में ये चीज बोली गई है कि जो फर्स्ट धर्म है ना वो तुम्हारा खुद के प्रति है। और मैं योगा को बहुत ही फॉलो करती हूँ अपने रियल लाइफ में। तो क्योंकि मैं इसी पाथ पे हूँ तो मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को कैसे बैलेंस करूँ। तो पहला मुझे ही पता है कि ओके, मैं अपने लिए योगा करना, अपने लिए मेडिटेशन करना, और दूसरा जब मैं लोगों के लिए करती हूँ ना तो मैं बहुत बैलेंस रहती हूँ। इसके लिए एक मन में एक जुनून है कि भाई ये जो बैलेंसिंग है ना वो बना के रखनी है, लोगों के लिए करते रहना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा इस लाइफ में। आज आप यहाँ पहुंचे हो और आपकी जर्नी है, आपको चलते जाना है। और लाइफ में आप देखोगे कि नए नए स्टोन्स आते रहेंगे, नए नए पत्थर आपकी लाइफ में आते रहेंगे। लेकिन आप अंदर से अगर पूरे जोश के साथ बैठे हुए हो कि आपको करना है, और आपने अगर ठान लिया है कि लोगों के लिए करना है, तो आप करोगे। और ऐसा आपको काम करना है कि जिसमें आप बैलेंस रहो। मतलब ऐसा नहीं करना है कि चलो आप जोश में हो कि आप काम कर रहे हो तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, नहीं मुझे तो सिर्फ अब अपने लिए करना है, अपना नाम कमाना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप काम करो, लेकिन साथ ही साथ आपको फैमिली को भी देखना है, आपको अपने, अगर अपने हस्बैंड को देखना है,
आपका हस्बैंड किस चीज में खुश होता है, आपको उधर टाइम देखना है, अपनी फैमिली को टाइम देखना है, मतलब सब कुछ आप बैलेंस करके ही चलना है। अगर आप बैलेंस करके नहीं चलोगे तो फिर आप अकेले ही आगे बढ़ते रह जाओगे, कोई साथ नहीं होगा। राइट। तो सब कुछ काम भी करना है, जुनून के साथ भी करना है, और बैलेंस में रख कर ये के ही करना है। तो ये जो मैं भी जो भी काम कर रही हूँ वो एक अंदर से एक जोश बना रहता है, क्योंकि जब लोगों का काम होता है ना, और लोग जब बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा हो गया, ये बड़ा अच्छा हो गया, शायद नहीं भी बोलते होंगे, बहुत लोग कॉल करके बोल देते हैं, बहुत लोग नहीं भी बोलते हैं, लेकिन अपने अपने काम से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने ना ईमानदारी से काम किया है। तुम जो भी काम ईमानदारी से करते हो ना, वो सिर्फ तुम देखते हो। जब तक तुम्हें खुद के लिए सेटिस्फैक्शन नहीं होना, तुम्हें दुनिया का कोई भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो मेरी लाइफ में जो काम है ना, वो मुझे सेटिस्फाइड करता है। मेरा काम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ उस काम से ना मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वो काम मैं ईमानदारी से कर रही हूँ। उसमें मैं किसी को टाल नहीं रही हूँ, बहाने नहीं कर रही हूँ, मैं अपने काम में झूठ नहीं बोल रही हूँ, समर्पित हूँ। और एक ट्रस्ट है कि हे परमात्मा, आप जो काम करा रहे हो ना, वो बड़ी ईमानदारी से ही ऐसे ही मुझे कराते रहना, और अपनी छत्र छाया में रखना, तो ये काम को मैं ऐसे ही करती रहूं। तो ये चीजें जो चल रही है वो मुझे बहुत जोश देती है। वेरी और नाइस। घर का माहौल भी वैसा ही है, सत्संगी माहौल है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ये बहुत मेडिटेशन करते हैं, बड़ों की ब्लेसिंग साथ में है, गुरु की ब्लेसिंग साथ में है। तो घर का माहौल भी वैसा है कि बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो आपकी जर्नी वो चल रही है, क्योंकि आप जो है ना, जब तक सपोर्ट नहीं हो, आप अकेले आप सोचो कि सब कुछ एक लेके चल दोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि हमें लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है, दूसरे कहाँ मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप शांति से, जब आपके अंदर एक समझ आ जाती है और जब ध्यान से देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आपको काम करने में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुम्हारे सामने बात कर रही हूँ शीतल, तो आज इस टाइम को भी मैनेज करने में कोई साथ दे रहा है, कोई फोन बज रहा है तो कोई उठा रहा है, मेड है टाइम पे आ रही है, खाना टाइम पे, तब जाके ये काम हो पा रहा है, बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचो कि सब आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो और ये बोलो मेरी जर्नी तो अकेले की है, देखा सब कुछ मैंने किया। और आप ये भी कह सकते हो दूसरा कि नहीं, ये काम इसके लिए हुआ कि हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन सब अपनी तरह तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने ये काम भी कर लिया। नहीं नहीं, तो वेरी नाइस। हमें अंदर से शुक्रगुजार होना है सबके लिए। सच में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वी शुड ऑलवेज बी हम्म, ग्रेटफुल फॉर हमारे आसपास हम्म, जो भी है, जो भी हमें साइलेंटली बोल के या जैसे भी हमें मदद कर रहे हैं, जिनकी जैसे भी हमारे साथ मदद हो रही हो, उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच में ये बहुत सही चीज है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सलाह हम सबके लिए जरूर शेयर करें कुछ। देखो पहली बात तो ये है कि आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस भी माहौल में आप रह रहे हो, यानी जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, उनसे कभी भी दुश्मनी मत लो, उनके साथ कभी भी मन को खट्टा मत करो। कोशिश करो कि अगर कोई मन मुटाव हो रहा है तो उसको समझ करके दूर करने की कोशिश करो, सहयोग दो। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आप अकेले ही नहीं चलोगे। आप अपने लिए रास्ता वैसा निकालो जिसमें सबको साथ लेके चल सको। सिर्फ खुद को ही मत देखो। मैं ये नहीं कहती कि खुद को इग्नोर कर देना है, क्योंकि मैंने आपको ये ध्यान होगा कि ये बात शीतल बोली कि आप सबको खुश करना चाहते हो, इसका मतलब है कि आप खुद को मारना चाहते हो। समझ रहे हैं कि हम कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना खुद को खत्म कर देते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, हमें भी जीना है और दूसरों को भी जीने देना है। तो अपने लिए रास्ता ऐसा निकालना है ना, विन विन सिचुएशन, मतलब बैलेंस होता रहे दोनों चीजें बैलेंस है। दोनों चीजें। और आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि आपको करना है, करना है, करना है, तो आप करोगे ही। देखो हर्डल्स तो लाइफ में आएंगे ही, आपको कोई भी चीज बनी बनाई तो नहीं मिलने वाली। आप सोचोगे आपके लिए सब कुछ परोस दिया गया और आपको दिया गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा।
अगर आपको कुछ भी खाना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। चलो सामने लाके किसी ने रख दिया, मुंह तो आपको ही चलाना राइट। है ना। तो चीजें कुछ भी है ना, तो आपको लगे आपको अपनी मेहनत करते रहनी है, हार नहीं माननी है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब बहुत देर हो गई है। किसी भी चीज की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हो। मैंने तो पता नहीं कितनी लाइन चेंज की है, मेडिकल लाइन, उसके बाद इंजीनियरिंग लाइन, फिर उसके बाद देख रहे हो कि ये लाइन, मतलब। और जब भी शुरू किया है तो मुझे यही लगा कि मैं जीरो ही हूँ, और आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि पता नहीं, कुछ जानती तो नहीं हूँ, सब ऊपर वाला कर रहा है। और सच में ऐसा ही है कि बार बार जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे ऊपर वाला ये सब कर रहा है, ये तो मुझे नहीं आता, पता नहीं ऊपर वाला कैसे दिमाग दे रहा। पता है, जब आज का ये लाइव था ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा सच में। फिर मैंने बोला ऊपर वाले जो तुम बुलवाओगे ना वो मैं बोल दूंगी। राइट। समझ में आया कि एक ट्रस्ट। हाँ, तो वही सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। जो हमें तो होगा अपना देखा, काम, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तो बस आपको विश्वास रखना है ऊपर वाले पे और खुद पे भी, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, कभी भी कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ दो, घर छोड़ दो, पति को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सिर्फ मैं ही देखूं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, आप अकेले हो जाओगे। अकेला राइट। मजा नहीं आता, साथ में मजा हाँ, आता नहीं, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सही चीज आपने शेयर की। और नेहा जी, सच में मतलब आपकी पूरी जर्नी सुनने के बाद ना एकदम, मतलब मैं अलग ही, मतलब पूरी इमेजिनेशन में चली गई थी। मैंने सब कुछ इमेजिन कर लिया, आपका बचपन, आपके कॉलेज डेज, आपकी शादी के पल, मैंने सब कुछ इमेजिन कर लिया। एंड इट वाज रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच। है। थैंक यू बहुत, शीतल, थैंक यू शीतल। थैंक यू जो सो भी मच। जो भी ये लाइव देख रहे हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे भाई बहन, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जो बड़ी बहन है वो तो एक दोस्त की तरह है, मैं दोस्त बोलो, माँ बोलो, सब कुछ। मम्मी से भी उतनी बातें शेयर नहीं होती हैं, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन है उससे हम दोनों जो हैं वो भी एक दोस्त की तरह हैं। जो भी शेयर करना होता है मैं उससे कर लेती हूँ। और हम दोनों एक ही लाइन में है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है और मेरी फील्ड वो है, तो हम दोनों की बातें एक ज्ञान को लेकर के बहुत अच्छी हो जाती हैं, एक दूसरे को एक समझ देना। शायद वो भी देख रही होगी, उसको बहुत बहुत थैंक यू। और जितने लोग हैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी डैडी, जो मेरे फैमिली वाले हैं, जो भी ये देख रहे हैं और इतने प्यार से इस जर्नी को सुन रहे हैं, और सुनने के लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल, तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि शायद आज तक ऐसे बैठ के मैंने अपनी जर्नी किसी के आगे बोली नहीं है, या फिर पहले मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे बोलूंगी। दूसरों के बारे में तो हम बात करते हैं हमेशा, और दूसरों को लेकर के हम एडवाइस देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब अपनी बात बोलने की आती है ना, तो थोड़ा सा हम पैर पीछे कर लेते हैं। बहुत बार लगता है कि क्या बोला जाए, बहुत सारी चीजें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। तो लेकिन फिर भी एक ऊपर वाले ने हिम्मत दी कि नहीं, चलो जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम शुरू होते हैं। आपको थैंक यू सो मच। चंदन मदनानी जी लिख रहे हैं, लव यू दीदी। लव यू टू। और आपके हार्ट, इतने सारे हार्ट फ्लोट हो रहे हैं, बताए। तो आई होप कि आपके इन लॉज में और आपके दोनों जगह, सब जगह से आपको ऐसे ही प्यार मिलता रहे, और आप ऐसे ही प्यार सबको देते रहें। और हमारी तो यही एक इच्छा होगी कि हमेशा खुश रहें। तो सच थैंक में यू। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपकी स्टोरी, इतनी अच्छी स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, फिर मिलेंगे। फिर ओके, मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा कि नेहा जी ने कितनी वंडरफुली अपनी स्टोरी शेयर की। एंड बहुत कुछ, उनकी स्टोरी से बहुत कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस थे जो हमें सीखने के लिए हमारे हाथ में है। हमें वो सीखना है, सीखे, नहीं सीखना है, नहीं सीखे। बट देयर वाज सो डेप्थ इन हर कॉन्वर्सेशन। सो आई होप आप जो देख रहे हैं, आप सब जो देख रहे हैं, आप सबने बहुत आप लोग भी बहुत डेप्थ में चले गए होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। Thank you so much, everyone. Thank you so much.
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, बाय बाय।